all the traffic sent from R3 तो भेजना ट्रैफिक किनू ट्रैफिक भेजना है राउटर 1 ਤੇ ਰਾਊਟਰ 3 ਦੇ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਆ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਈਪੀ ਜਦੋਂ ਰਾਊਟਰ 2 ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਨੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸ ਆਈਪੀ ਨਾਲ ਲੀਵਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਆਇਆ हाँ जी सर। ਰਾਊਟਰ 3 ਤੋਂ ਦੇਖੋ all the traffic sent from R3 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਊਟਰ 1 ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ और ट्रैफिक जो भी कन्फिगरेशन करनी है नेट कन्फिगरेशन वो राउटर 2 ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਵਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੋਊਗਾ तो ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਐਕਸੈਸ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦ ਐਕਸੈਸ ਲਿਸਟ ਦ ਨੇਮ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨੈਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀ ਲਾਈਕ ਰਾਊਟਰ 2 ਤੇ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਟਰ 2 ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਓਕੇ you can use the question mark so IP access list standard use करनी so these are like standard okay so there is two ways here right standard and extended standard give a name like nat और फिर NAT configuration से router 3 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ IP ਹੈ so one is like this loopback IP so permit IP 192.168.3.1 this is a loopback IP so permit जो single IP करना है make sure you have use the host keyword so permit IP okay sorry this is a standard ACL च keyword use नहीं था like for example ACL का काम किया either you gonna allow the traffic or deny the traffic use permit then give a space then use the question mark okay so you need to mention the host is 192.168.3.1 the second IP is permit host 10.2.3.3 permit host 10.1.3.11 तीन IP है router 3 all three we have called in the ACL okay now this is like the first thing like netting when we're doing the NAT configuration the first thing we need to create a ACL and this is what we did okay so far like we created the ACL and the next we need to apply the NAT configuration so NAT configuration was the if you see the diagram you the Ethernet 0y1 this is your IP NAT inside or Ethernet 0y0 की होगा IP NAT outside like this is like the first thing so we need to define the configuration okay यहाँ पे जो packet tracer है this packet tracer lab has a different interface okay so this has this interface gigabit 0y1 and gigabit 0y but make sure जो real lab होगी like already they have like a given the interface number you can also verify by this command show IP interface brief so interface gigabit 0y1 IP NAT inside और जो मेरा लीविंग इंटरफेस है लीविंग इंटरफेस कौन सा जेड़ा राउटर बन के नहीं जा रहा so the leaving interface is Ethernet 0y0 so here is a IP NAT outside और फिर we need to define the NAT configuration okay which is start from IP NAT then you use the question mark so how are you going to use the question mark okay let's say if your word is complete then give a space then question mark in case let's say your word is not complete then don't give the space let's say I want to see what are the commands start from NA don't give the space okay now you can see like from NA two commands are showing here one is name server one is NAT so we need a NAT once this word is complete then give a space then use the question mark so here we are doing like inside translation okay so inside then give a space question mark source give us question mark static और यहाँ पे हमें क्या है sorry we need to define the ACL list so list क्या basically specify the access list describing entry so basically ACL we have created like NAT
उसके बाद स्पेस, वी नीड टू यूज द लीविंग इंटरफेस ईथरनेट, और यहाँ पे ईथरनेट क्या है, गीगाबिट 0 बाय 0। पैकेट ट्रेसर में गीगाबिट 0 बाय 0 है, बट लेट्स से इन द रियल लैब वहाँ पे इफ यू हैव डिफाइंड ईथरनेट 0 बाय 0, so we need to use that interface. But we are doing like a dynamic pad. Normally हम real world we will use this pad configuration, so you make sure you use this keyword, okay, overload. So configuration is done. Then you need to verify, okay, from router 3 you need to initiate the ping should work, so you need to ping the router 1 IP address. Okay, so the way we will verify, we will go to the router 3 and we will say enable ping 192.168.1.1, and this ping should work. You see, you can see also on the router 2 the NAT configuration which you did, make sure that is working. How we can verify the configuration? Like show IP NAT translation. This is a command. You can see like when we initiated the ping, this is a router 3 IP address, और वो translate हो गया इस IP में. So we initiated the traffic from like a sorry, inside IP. This is our IP 10.2.3.3, और वो इस IP में translate हो गया, which is this IP 10.1.2. Clear? or any doubt इस लैब में? सर क्लियर है। क्लियर है ना? द हाँ नेक्स्ट टास्क क्या है? R1 configure as a NTP server and R2 as a client. So for configuring the NTP server, this is a command. NTP master 1. This command basically make a router as a NTP server. NTP server का काम की है, the NTP server used to provide the timing, network time protocol. Okay, so NTP source Ethernet 0 wire 2. So this means like this IP जो भी इस interface के ऊपर IP address है, this will act as a for other, okay, IP act as a NTP server IP. So we are making like in our topology router 1 as an NTP server. So NTP server का काम क्या है? For providing the timing, okay. So other devices can get the correct timing, okay. Because timing is very important, okay. Because जब भी when we doing the troubleshooting, so जब log generate होते हैं तो उस पे time लिखा आता है. Make sure that time is correct. Because sometimes user says like जो issue आया वो इस duration पे आया था, तो जब हम राउटर के लॉग चेक करेंगे तो अगर टाइमिंग मैच होगी तो इट विल बी ईजियर, हमारे लिए ईजी रहेगा चेक करना. सो इस केस में राउटर 1 को क्या हमें एनटीपी बनाना है, एनटीपी मास्टर बनाना है. ठीक है, द कमांड इज लाइक जस्ट गो टू द अगेन लाइक मोस्टली जो कमांड्स है आपको पता, आप एनटीपी की बात कर रहे हो तो एनटीपी मोस्ट ऑफ द कमांड उसी टॉपिक से स्टार्ट होती हैं. एनटीपी देन यूज द क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे क्या हमें इसको मास्टर बनाना है. देन I think give a number 1 IP. This is basically for priority, and then you also need an NTP use question mark source is not working here in packet tracer. Even this command is enough to make us router as a NTP. but यहाँ पे इन्होंने additional command दे रखी है this one, क्योंकि जो इसने बोला है like configure the router 1 as a NTP server, और R2 क्या होगा, हमारा client होगा, not as a peer using the IP address. So this is like so here they have specifically mentioned using the IP address of Ethernet 0 wire 2. So make sure only this IP 10.1.31 use as a NTP IP. So that's why they use this command NTP source router 1 पे. तो अदरवाइज क्या होता है, आप राउटर 1 का कोई भी IP एड्रेस यूज कर सकते थे और वो NTP प्रोवाइड करता
लेकिन इस केस में क्या है, इन्होंने स्पेसिफिक ये मेंशन करा है, तो आपको वो ये कमांड देनी पड़ेगी। और जो दूसरे क्लाइंट होंगे, जैसे राउटर टू मेरा क्या है, क्लाइंट है। अब मैंने इसको सर्वर बना दिया राउटर वन को, और राउटर टू क्या है, क्लाइंट। तो जो क्लाइंट है उस पर हमें कमांड देनी पड़ती है एनटीपी सर्वर, और हमें डिफाइन करना पड़ता है बी हमारे सर्वर का आईपी क्या है। तो राउटर का कौन सा आईपी हमें यूज करना है, ये वाला 10.1.3.1 एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, एक को सर्वर बनाना है, दूसरे को क्लाइंट बनाना है। हाँ जी, ओके सर। ओके, और इसको इसकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगी, शो क्लॉक या शो एनटीपी स्टेटस। सो मेक श्योर लाइक इस पे क्या टाइम, शो एनटीपी स्टेटस, दिस इज द बेस्ट कमांड, शो इंस्टेड ऑफ शो क्लॉक। यहाँ पे तेरी जो क्लॉक है वो क्या सिंक्रोनाइज आनी चाहिए। और किससे आ रहा है ये रेफरेंस, ये राउटर राउटर वन का आईपी एड्रेस है, शो एनटीपी। मेक श्योर यू यूज दिस वेरिफिकेशन कमांड टू सी द रिजल्ट। ओके, हाँ जी सर। थर्ड टास्क क्या है इसी लैब के अंदर, कॉन्फ़िगर द राउटर वन एज अ डीएचसीपी सर्वर। सो डीएचसीपी सर्वर का काम क्या होता है, ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करवाना। सो यूज दिस नेटवर्क एज अ like network, this is your network configuration, the make sure the pool name obviously like जब भी आप नेम यूज करना वही सेम ही नेम यूज करना आपको, net pool, and use a single command, using a single command exclude the IP address range। और फिर राउटर टू पे, सॉरी इथरनेट 802, ओके राउटर वन को डीएचसीपी सर्वर बनाना है, और इथरनेट 0 वायर 2 विच इज दिस वन, जो कि इस तरफ फेस कर रहा है राउटर वन को obviously। So you see like that how DHCP work, okay, DHCP work using a broadcast। So once we configure the DHCP server here, जो टेस्टिंग करनी है वो इसी इंटरफेस पे करनी है। वाई, बिकॉज दिस इंटरफेस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राउटर वन। बिकॉज वंस दिस राउटर, नॉर्मली क्या होता है, राउटर के जो इंटरफेस होते हैं दे डोंट पास द ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक। अगर आप इस इंटरफेस पे टेस्ट करोगे तो नहीं है, क्योंकि ये इंटरफेस डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है राउटर वन पे। तो डेफिनेटली उस इसी इंटरफेस पे मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा। यूजली लाइक हम इंटरफेस पे क्या मैनुअल आईपी देते हैं, बट यू नो दैट लाइक टू गिव, to assigning the IP address, we have a two method, right? One is manual, one is through DSCP. So we will see IP address DSCP। ये रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट पैकेट भेजेगा किसको, राउटर वन को, एज राउटर वन एक्टिंग एज ए DSCP सर्वर। सो उसका क्या है ट्रैफिक, वो क्या करेगा, हमें रिस्पॉन्ड बैक करेगा। तो इस इंटरफेस को अपने आप आईपी एड्रेस मिलना चाहिए उस रेंज में जो हमने DSCP पूल में डिफाइन करी है। तो दिस इज बेसिकली द लैब इज सेइंग। ओके, सो लैब के अंदर हमें ये इसको टेस्ट करना है। तो DHCP कॉन्फ़िगरेशन बनानी है राउटर वन पे। सो राउटर वन, ठीक है, तो राउटर वन पे हमें आईपी DHCP पूल, और पूल का नाम वो यूज करना है, नेट पूल। अगेन ऑलवेज यूज द क्वेश्चन मार्क, लाइक मोस्ट ऑफ द कमांड इधर स्टार्ट फ्रॉम लाइक जो टॉपिक का नाम है या उसके आगे आईपी। सो एंटर, देन गिव अ नेम, network, this is my network 10.1.3 as per slash in the real world। जो रियल राउटर है उस पे आप ऐसे /24 भी दे सकते हो अपनी नेटवर्क आईडी, नेटवर्क सबनेट मास्क या प्रीफिक्स लेंथ। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको स्पेसिफिक 255.25/24 है, राइट, दिस इज। एंड यूजली जो जो DHCP सर्वर में हम क्या है, जो फर्स्ट आईपी होता है वो क्या होता है, आपका गेटवे आईपी होता है। देखो ये यही गेटवे आईपी आएगा 10.1.3.1। ठीक है, जो फर्स्ट यूजेबल आईपी होता है वो आपका क्या होता है, गेटवे होता है, डिफॉल्ट राउटर कहते हैं इसको हम, 10.1.3.1। तो ये आईपी क्या होता है आपका, देखो ओबियसली यहाँ पे मेरे को तो बेसिकली ये क्या है, आप आपसे एक तरह से DHCP कॉन्फ़िगरेशन का टेस्ट करवा रहे हैं। तो ये आईपी क्या होगा, गेटवे आईपी होगा, क्योंकि जो राउटर थ्री है उसको कोई भी ट्रैफिक भेजना है वो इसी इंटरफेस इस आईपी की तरफ भेजना है। तो ये आईपी क्या होगा आपका, डिफॉल्ट राउटर होगा।
इवन दो इन्होंने मेंशन नहीं करा, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो इसका कोई इशू नहीं होगा। तो लाइक लेट्स से इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने सिंपली पूल बना रखा है, डीएससीपी नहीं कर रखा, कोई बात नहीं, वो एज ए ऑप्शनल है, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अगर आप कन्फिगर कर दोगे कोई आपके नंबर नहीं काटेंगे, बट इन्होंने नहीं कह रखा तो आप इनके मुताबिक ही चलना। मेक श्योर यू डोंट यूज दिस कमांड। ओके, द नेक्स्ट कमांड डेफिनेटली वी नीड टू यूज दैट, बिकॉज इन्होंने बोला है मेरे को आईपी एक्सक्लूड कराने हैं 1 से लेके 10 तक। तो ये आईपी, जो आईपी मिलेगा वो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, क्योंकि ये आईपी क्या है, डीएससीपी की एक्सक्लूड उसमें है। मेक श्योर इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर ये जो एक्सक्लूड कमांड है वो इसके अंडर नहीं चलेगी, वो आपको बैक जाना पड़ेगा एक स्टेप, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलेगी। सो आईपी डीएससीपी use the question mark, okay, so we can define our excluded address। तो यहाँ पे डीएससीपी कीवर्ड मेरा कंप्लीट हो गया, स्पेस क्वेश्चन मार्क एक्सक्लूड एड्रेस 10.1.3.1, स्टार्टिंग आईपी ये है, एंडिंग आईपी क्या है, दिस 10। And this is what they want. Now, how we gonna test this? Okay, so for testing, we will go to the simulation. Okay, और राउटर 3 पे हमें इंटरफेस पे जाकर चेक करना है आईपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो इंटरफेस गीगाबिट 0i2 IP address DSCP. So either you can give the manual IP or through DSCP. How you gonna verify? आपके पास यहाँ पे log मैसेज भी आ गया। सो ये सीइंग लाइक इस इंटरफेस पे हमने ये आईपी एड्रेस असाइन हो गया अपने आप ही थ्रू डीएससीपी, एंड दिस इज व्हाट दे वांट। क्लियर? हाँ जी सर। कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ सकते हैं मेरे से अभी भी। हाँ जी ओके सर, इत्थों तक नहीं है। नो क्वेश्चन, ओके। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कॉन्फ़िगरिंग एसएसएच the connectivity from router 1 to router 3, from router 1 to router 3। ये तो यहाँ पे from आ गया, दैट मीन्स दैट इज अ सोर्स टू राउटर 3। सो राउटर 3 क्या आ जाएगा, डेस्टिनेशन आ जाएगी। सो फ्रॉम राउटर 1 टू राउटर 3, आई बिलीव लाइक एसएसएस कॉन्फ़िगरेशन राउटर 3 पे हमें करनी पड़ेगी। देन वी नीड टू टेस्ट इट फ्रॉम राउटर 1 while accessing via other remote connection protocol access user। तो ये इन्होंने कहा है, मतलब लाइक जब हम एसएसएच करेंगे तो लाइक यू नो दैट, लाइक जब हम डिवाइस को एसएसएच करते हैं तो हमें यूजर नेम पासवर्ड चाहिए। तो ये एक्सेस फॉर ये यूजर नेम पासवर्ड हमें यूज करना है, मस्ट बी सेट ऑन द राउटर 3 यूजिंग द आर एस ए। ये जब हम आर एस एस एच कन्फिगर करेंगे तो जो की लेंथ है वो ये होनी चाहिए। वेरीफाई द कनेक्टिविटी यूजिंग एस एस एच सेशन राउटर 1। हमें वेरीफाई करना कहाँ से करना है, राउटर 1 से करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, देखो फ्रॉम क्या होता है, फ्रॉम ऑलवेज क्या हमारा सोर्स आईपी हुआ, ये डेस्टिनेशन क्या होगा ये, यानी कि एस एस एच हम यहाँ पे करना है कन्फिगर, और टेस्ट कहाँ से करना है, राउटर 1 से करना है। ओके, डोंट डू नॉट मॉडिफाई द कंसोल एक्सेस लाइन नंबर। ठीक है, इसको बाकी कोई चीज हमें उसको वो नहीं करनी, वेरीफाई है कनेक्टिविटी। सो एसएसएच करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मेरे को बताना, क्या कनेक्टिविटी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है एसएसएच करने के लिए। सर IPSSH वर्जन 2। राइट, यस, राइट। लेकिन उन्होंने बोला नहीं है कौन सा वर्जन यूज करना है, बट स्टिल आई बिलीव यू कैन यूज दिस कमांड। ओके, कोई इसका इशू नहीं होएगा। आई पी एस एस एच वर्जन 2। ओके, तो यहाँ पे पहले इन्होंने बोला की जनरेट करनी पड़ती है हमें आर एस से। सो उसके लिए मेक श्योर इसके ऊपर पहले से डोमेन नेम कॉन्फ़िगर हो। जो की होती है ना, वो डिवाइस का जो होस्ट नेम होता है और डोमेन होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे डोमेन इन्होंने कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा मेरे ख्याल में, तो यूजुअली मैं आपको बताऊँ आईपी होस्ट नेम में से ऑलरेडी इन्होंने कॉन्फ़िगर कर रखा होगा राउटर 3। तो यहाँ पे अगर मैं R3 दे दिया, आईपी सॉरी होस्ट नेम R3 और आईपी डोमेन नेम
जस्ट डोमेन नेम। This is so you see like when I using the tab क्या करता है, नॉर्मली कमांड को कंप्लीट कर देता है, लेकिन वो कंफ्यूज है अभी आपको कौन सा कमांड यूज करनी है, बिकॉज डोमेन से ये तीनों कमांड स्टार्ट हो रही है। वी वांट टू यूज दिस कमांड, ओके। सो यूजली जब हम आर एस ए की बनाते हैं एस एस एच में, वो कॉम्बिनेशन होती है किसका, डिवाइस का, होस्ट नेम का। आई एम अज्यूमिंग ये उन्होंने पहले कॉन्फ़िगर कर रखा होगा, अगर नहीं कर रखा होगा तो आपको एरर आएगा, मैं आपको भी दिखाऊंगा आपको एरर। तो मेक श्योर ये चेक कर लेना उसके ऊपर हो एक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी। आईपी डोमेन नेम, कुछ भी नेम दे दो एक बार, cisco.com। अब मेरे को की जनरेट करनी है, क्रिप्टो की क्वेश्चन मार्क जनरेट। कौन सी की करनी है, स्पेशली दे हैव टोल्ड आर एस ए दिस की यूज इन एस एस एच कॉन्फ़िगरेशन, क्वेश्चन मार्क एंटर, उसके बाद एंटर कर देना बस। ये सिंपली हमें ये दिख रहा है यहाँ पे, एंटर कर देना, एंटर। उसके बाद पूछेगा यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने की जनरेट कर रखी है, तो मेरे को लगता नहीं रियल वहाँ पे लैब में आपको करने की जरूरत है, ये चीज़ ऑलरेडी इन्होंने ये कर रखी थी। R3 देखो ये बन रखी है ऑलरेडी। हम अब नई की जनरेट कर रहे हैं, ये हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू रिप्लेस देम, यहाँ पे हम नो करेंगे। सो आई एम अज्यूमिंग उन्होंने ऑलरेडी कर रखी है ये, स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। तो मेक श्योर उन्होंने क्या करा है, एस एस एच की कॉन्फ़िगरेशन कनेक्टिविटी चेक करनी है। तो एक्सेस फ्रॉम दिस यूजर नेम पासवर्ड, तो ये यूजर नेम पासवर्ड पहले तो क्रिएट करना हमें। आर एस ए की इन्होंने बोला ये सेट करो, तो इसका मतलब हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें मेक श्योर जो लेंथ है वो आर एस ए जो की के वो ये होनी चाहिए। तो आई थिंक लाइक हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। यस कर दो यहाँ पे, क्योंकि जब हम यस करेंगे तभी हमारे पास आर एस ए की क्या ऑप्शन आएगा, और को क्या पता पहले वाली जो की साइज है उसका क्या साइज क्या है। तो वी आर नॉट श्योर, सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग दिस, ओके। डोमेन नेम आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, आई एम अज्यूमिंग ऑलरेडी डोमेन नेम होगा। यहाँ पे आपको साइज मेंशन करना है जो उन्होंने कल बोला है। तो ये इधर आपका देखो 512, इसका मल्टीप्लाई होता है, फिर 1024, फिर नेक्स्ट क्या होगा 2048, फिर आगे आगे ऐसे डबल होता रहेगा ये। आपको यही साइज यूज करना है, बाय डिफॉल्ट साइज ये है देखो ब्रैकेट में, हाउ मेनी बिट्स इन द मॉड्यूल यू वांट, लाइक बाय डिफॉल्ट ये है, लेकिन हमें ये चाहिए 1024, एंटर। तो ये की जनरेट होगी बस। उसके बाद हमें यूजर नेम बनाना है, यूजर नेम जो भी उन्होंने मेंशन करा है वही सेम एग्जैक्ट यूजर नेम यूज करना है आपको। नेट एडमिन जो भी है, मैं यहाँ पे यूजर नेम ABC बना रहा हूँ, और एंड पासवर्ड। सो पासवर्ड के लिए देखो, आप ये हमेशा ये कीवर्ड यूज करते हो इंस्टेड ऑफ पासवर्ड, क्योंकि ये जो इंक्रिप्शन है ये हाईली सिक्योर है, ये लोअर सिक्योर है। पासवर्ड नहीं, आप सीक्रेट यूज करते हो। तो यहाँ पे आपको वो पासवर्ड देना है जो भी उन्होंने मेंशन कर रखा है, मैं यहाँ पे ABC दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद टेस्ट करना है इसको, और ओके फिर हाँ उसको टेस्ट करना है। अब मैं टेस्ट कैसे करूँगा, राउटर 1 पे जाऊँगा, राउटर 1 पे टेस्ट करने के लिए मेरे को क्या है, जो इसका न्यू IP है 10.1.3.11। अब इसको टेस्ट कैसे करना देखो, SSH क्वेश्चन मार्क यूज करो। पहले हमें -L यूज करना पड़ेगा फॉर द यूजर नेम। तो यहाँ से -L, यूजर नेम क्या आएगा जो हमने टाइप करा था ABC, और उसके बाद IP एड्रेस। ये किसका IP है, राउटर 3 का। तो ये हमें पूछेगा पासवर्ड ABC। यू सी, नाउ वी आर ऑन राउटर 3। दिस इज व्हाट दे वांट, हमें राउटर 1 से राउटर 3 को एक्सेस करना था थ्रू SSH। सो दिस इज हाउ यू विल टेस्ट इट, ओके। SSH -L, L किसके लिए है, यूजर नेम डिफाइन करने के लिए। तो यूजर नेम हमने ये, तो जो लैब आएगी CCNA की, वहां पे मेक श्योर यू यूज द नेट एडमिन, ओके। और फिर उसके बाद क्या है, उसका IP एड्रेस, और वो पासवर्ड मांगेगा, देन यू एंटर द पासवर्ड। तो ये आपकी फर्स्ट लैब क्या आपकी कंप्लीट होगी। मेक श्योर जो लैब है इसमें आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके फेल होने के। ठीक है, आईपी सर्विस नेक्स्ट लैब देखते हैं। अब नेक्स्ट लैब क्या है? ਸਰ यस ਹੁਣ बोलो। ਐਂਡ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? You can use any command like, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? you can use the if they see like if they see to you can use the right configuration, और मैंने देखा शायद लाइक उसमें लैब सिमुलेटर में ये कमांड चलती है, कॉपी रनिंग स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, देन यू से एंटर यस। रियल में कंपनीज में क्या होता है, आप जो डिवाइसेस होते हैं कोई भी कमांड यूज करो, दे डोंट केयर एज लॉन्ग एज आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो डिज़ायर कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कई बार वो शायद एक ही कमांड काम करती है, ये वाली कॉपी, ये जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो टेम्परेरी मेमोरी में होती है, परमानेंट मेमोरी में उसको करने के लिए ये आपको स्टार्ट और कॉन्फ़िग में उसको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, जो देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में ऑलमोस्ट सेम ही है, ये जो आईपी सर्विस सिम वर्जन 2, बस इन्होंने क्या कर रखा है देखो, ये बस ये यहाँ पे नाम चेंज कर रखा है। देखो यहाँ पे भी एसएसएच का टेस्ट करवा रहे हैं, एनटीपी का टेस्ट करवा रहे हैं, डीएससीपी का टेस्ट करवा रहे हैं, नेट कॉन्फ़िगरेशन का टेस्ट कर रहे हैं। मेक श्योर यू नो द वेरिफिकेशन कमांड, लाइक नेटिंग के लिए क्या है, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, प्रॉपर ट्रांसलेशन हो रही है, पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। डीएससीपी के लिए प्रॉपर आईपी एड्रेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एनटीपी के लिए शो एनटीपी स्टेटस क्लॉक सिंक्रोनाइज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, क्योंकि ऐसा ना हो आपने कॉन्फ़िगरेशन कर ली और उसको वेरीफाई नहीं करो। तो शो कमांड, मेक श्योर यूज द शो कमांड टू वेरीफाई द रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी है, बिल्कुल सिंपल है। सो ऑब्वियसली स्टैटिक राउटिंग कन्फिगर करने के लिए अब ये इन्होंने सिमुलेशन दे रखी है, टोपोलॉजी भी दे रखी है। सो दिस इज द फर्स्ट डायग्राम, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4। और ये इन्होंने क्या है, जो आईपी एड्रेस दे रखे हैं, यहाँ पे इन्होंने डूल स्टैक आईपी दे रखे हैं। देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, डूल स्टैक का मतलब क्या होता है, हम आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं, एक IPv4, एक हमारे IPv6। हम एक ही डिवाइस को, जिसमें इवन अपने लैपटॉप को भी हम दो आईपी दे सकते हैं, IPv4 अपना काम करेगा और IPv6 अपना काम करेगा, दैट इज कॉल्ड ड्यूल स्टैक। तो दोनों आईपी दे रखे हैं, नाम से पता है ड्यूल का मतलब क्या होता है, डबल। ठीक है, बट यहाँ पे फर्स्ट लाइक अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, configure the static routing using the host route to establish the connectivity from router 3 to the router 1 using loopback address using the source IP address। ये हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। पहले ये फ्रॉम समझो, फ्रॉम हमेशा क्या होता है हमारा, सोर्स राउटर 3 टू राउटर 1, लूपबैक एड्रेस यूजिंग द सोर्स आईपी। तो हमें राउटर 3 से राउटर 1 की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। सो राउटर 3 हमारा ये है, और सोर्स आईपी ये लगा के, डेस्टिनेशन आईपी क्या है राउटर 1 का, ये लूपबैक आईपी। तो राउटर 3 पे इन्होंने राउट डाला, आईपी राउट, और हमें स्पेसिफिक इसी आईपी के लिए राउट करना है, सिंगल आईपी के लिए। तो ये हमें होस्ट क्या लिखना पड़ेगा, /32। होस्ट राउटिंग जब हम करते हैं तो जो सबनेट मास्क है वो क्या होएगा, 255 255 255 255। तो जो लूप बैक आईपी होते हैं देखो, वो क्या होते हैं, वो ऑलवेज क्या होते हैं, /32 होते हैं, सिंगल आईपी होते हैं, होस्ट, इसको हम होस्ट आईपी बोलते हैं, सिंगल आईपी। और हमें नेक्स्ट टॉप आईपी क्या देना है, नेक्स्ट टॉप आईपी हमें ऑलवेज क्या देना है, ऐसा नहीं है हम सीधा राउटर 1 का नेक्स्ट टॉप आईपी दे देंगे, नहीं। रिक्वेस्ट आपकी क्या है, होप बाय होप जाती है, तो नेक्स्ट टॉप आईपी किसका आएगा, इसका आएगा, ये वाला 229। ये आईपी है देखो, ये सब ये नेटवर्क आईडी है, 229 किसका आईपी है, राउटर 2 का। तो ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, ये हमने राउटिंग कर दी। उसके बाद आपको कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी। आई एम अज्यूमिंग लाइक राउटर 2 को ऑलरेडी पता होगा इस लूपबैक को कैसे जाना है, क्योंकि ये इन्होंने राउटर 2 पे हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करने को नहीं बोला। ओके, और नेक्स्ट क्या है, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देख रहा हूँ तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो राउटर 2 में भी क्या है,
तो ये इन्होंने फर्स्ट एक रिक्वायरमेंट दे दी। उसके लिए आपको देखो राउटर 3 पे भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। हमने जो स्टैटिक राउट है वो किस तरफ डिफाइन कर दिया, राउटर 2 की तरफ कर दिया। अब राउटर 2 पे हमें करना पड़ेगा किसकी तरफ, राउटर 1 की तरफ, ये आईपी। और ये किस तरफ पॉइंट होगा, 2 to 5 की तरफ होगा। अब देखो कम्युनिकेशन क्या होती है, बाय डायरेक्शन होती है। अब बाय डायरेक्शन होती है। अब इन्होंने राउटर 1 पे भी राउट डाला है, क्योंकि जब हम राउटर 3 पे टाइप करेंगे पिंग, पिंग करेंगे 192.168.1.1 को, अगर मैं ऐसे टाइप कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट सोर्स आईपी क्या लगेगा बताना मेरे को। राउटर 3 पे अगर मैं पिंग करूंगा सोर्स आईपी क्या लगेगा बाय डिफॉल्ट? राउटर 3 वाला ही। ये वाला, ये कोई राउटर 3 के दो आईपी हैं, एक लूबैक आईपी है, एक ये है। बाय डिफॉल्ट जो लीविंग इंटरफेस है, जब ट्रैफिक इस तरफ जाएगा तो ये जो इंटरफेस के ऊपर आईपी है 230, ये वाला 209.165.200, ये देखो ये नेटवर्क आईडी है। और ये इस तरफ एक आईपी इधर दे दिया 229, 230 इस तरफ दे रखा। तो 230 जाएगा बाय डिफॉल्ट हमारा एज ए सोर्स आईपी। तो अब जब ट्रैफिक देखो हमने राउटिंग कर दी, राउटिंग देखो इस तरफ भी हमने राउट पॉइंट कर दिया इस आईपी का 192.168.1.1 का। और राउटर 2 पे भी हमने पॉइंट कर दिया राउटर 1 की तरफ, वही ट्रैफिक इस तरफ चला गया। अब देखो जब हम पिंग चेक करते हैं तो ये क्या होती है, बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है एक तरह से। मतलब हम एको रिक्वेस्ट भेज दिया हमने, पिंग का रिप्लाई क्या आता है, एको रिप्लाई। अब इसको बैक जाने का भी पता होना चाहिए, तो इसे क्या कहते हैं, रिवर्स राउटिंग कहते हैं। तो अब राउटर 1 पे हमें रिवर्स राउट डालना है, जहां से ट्रैफिक आया वो हमें बैक भेजना है, किसकी तरफ भेजना है, राउटर 2 की तरफ। और राउटर 2 पे हमें कोई राउटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राउटर 2 पे ये नेटवर्क क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ऐसे ही इन्होंने पूरे स्टैटिक राउट करी है। और एट द एंड रिजल्ट क्या होगा, राउटर 3 मेक श्योर इट कैन पिंग द आईपी एड्रेस ऑफ दिस लूपबैक आईपी। क्लियर? ये समझ आए तीनों राउट कैसे दिए हैं? हाँ जी सर। इसी के लिए करना, ठीक है, इसी 230 के लिए राउटिंग करनी है। और देखो राउटर 2 पे हमें राउट डालने की क्यों जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो राउटर 2 है उसके लिए ये नेटवर्क क्या है, ऑलरेडी राउटिंग टेबल में एंट्री होगी किसके थ्रू, कनेक्टेड के थ्रू। ये क्लियर? आप बताओ मेरे को कोई डाउट है इसमें? हाँ जी सर, क्लियर है। उसके बाद ये ऐसे वेरिफिकेशन टेस्ट करी। सेकेंड टास्क क्या था, configure IPv4 default route on the router 2 designated for router 4। ओके, सो अगेन हमें डिफॉल्ट राउट किस पे कन्फिगर, ऑन राउटर 2 पे करना है, डेजिग्नेटेड फॉर राउटर 4। सो ये बेसिकली जूमिंग लाइक ये इन्होंने जो कर रखे हैं, ये ISP का लगा रखा है इन्होंने। R4 के पास ISP कनेक्शन होएगा, तो हमें डिफॉल्ट राउट पॉइंट करना है किसकी तरफ, राउटर 4 की तरफ पॉइंट। तो डिफॉल्ट राउटिंग कैसे करते हैं हम, IP राउट 0000 और टू राउटर 4। जो राउटर 4 का नेक्स्ट टॉप आईपी है, तो नेक्स्ट टॉप आईपी क्या है हमारा, .30। ये इतना ठीक कैसे हो गया, ठीक है, .30 ये वाला। तो इस राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। डिफॉल्ट राउट क्या होता है देखो, 0000। 00 मतलब क्या होता है, एनीथिंग। और इसका लुकअप ऑलवेज लास्ट में होता है, ठीक है। और इसके अंदर जब मेरे पास जो डेस्टिनेशन अननोन है, इंटरनेट मेरे को गूगल का आईपी नहीं पता, याहू का आईपी नहीं पता, तो उसके लिए मैं डिफॉल्ट राउटिंग करता हूँ। और नेक्स्ट टॉप आईपी क्या देता हूँ मैं, हमारा जो सामने वाले का डिवाइस है, ठीक है। द नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, कॉन्फ़िगर IPv6। IPv6 एड्रेस के लिए डिफॉल्ट राउटिंग करनी है, और किस पे करनी है, राउटर 2 पे करनी है, राउटर 4। तो जो कमांड है वो क्या होगी,
IP की जगह IPv6 आ जाएगा। IPv6 पढ़ा था आपने CCNA में? हाँ जी सर। IPv6 आ जाएगा। IP की जगह कमांड सारी की सारी क्या है, IPv6 आ जाएगी। और IPv6 राउट, ये डिफॉल्ट राउटिंग होती है उसमें, IPv6 में। 0 0 को हम ऐसे ऐसे जो मल्टीपल जीरो आ जाते हैं ना, तो उसको हम डबल डिनोट से कर देते हैं। तो सारी जीरो क्या है, दैट मीन्स का 2 टाइम ये ऐसे डॉट्स आ जाएंगे। और फिर जो सबनेट मास्क का वो भी 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट हॉप IP देना है। ये नेटवर्क आईडी है, ये होस्ट पोर्शन हमारा IPv6 में। तो ओबियसली यहाँ पे दे रखा है, ये बस ये कॉपी पेस्ट करना आपको, नेक्स्ट हॉप IP। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना। सो दिस इज अ कमांड यू विल यूज टू सेव द कॉन्फ़िगरेशन। कॉपी, मेक श्योर यू विल सेव द कॉन्फ़िगरेशन। ओके, वंस यू डन द कॉन्फ़िगरेशन, लैब में क्या है, आपको क्या है, कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है, राउटर 1 पे भी, राउटर 2 पे भी, राउटर 3 पे भी, ऐसे कॉपी रनिंग स्टार्ट। और फिर वेरीफाई करना है राउटिंग टेबल। जैसे IPv4 का राउटिंग टेबल चेक करने के लिए वेरीफाई करना है शो IP राउट। देन IPv6 का राउटिंग टेबल वेरीफाई करने के लिए शो IPv6 आ जाएगा। IP की जगह क्या आ जाएगा, IPv6 आ जाएगा राउट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट लैब। ओके, नेक्स्ट लैब क्या है आपकी, OSPF कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे OSPF कॉन्फ़िगरेशन करना है। सो दिस इज द डायग्राम। अब पहले स्टैटिक राउटिंग था, अब OSPF का प्रैक्टिकल है। OSPF का प्रैक्टिकल करने के लिए देखो, यू सी राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3। तो इन्होंने बता रखा है सारा। तो टास्क क्या है, कॉन्फ़िगर द राउटर 1, राउटर 2, राउटर ID यूजिंग एज अ इंटरफेस IP एड्रेस फ्रॉम द लिंक दैट इज शेयर बिटवीन देम। तो इन्होंने स्पेशली कहा है अभी राउटर 1, राउटर 2 पे जो OSPF राउटर ID है, वो वही होनी चाहिए जो ये लिंक शेयर कर रहे हैं आपस में। लिंक कौन सा शेयर कर रहे हैं, ये सबनेट कर रहे हैं। देखो 10.10.12, 1 इस तरफ है, 2 राउटर 2 की तरफ है। ओके, सो इस केस में क्या है, राउटर 1 पे जैसे राउटर OSPF में जाएंगे हम, बाय डिफॉल्ट राउटर ID वो पिक कर लेता है लूपबैक IP, या जो भी हाईएस्ट IP एड्रेस होता है। तो इन्होंने स्पेशल कहा, तो दिस इज अ वे लाइक अंडर द राउटर OSPF प्रोसेस, हमें राउटर ID डिफाइन करनी है जो उन्होंने बोला है। 12.1 जो शेयर्ड IP है इनके बीच में, जो शेयर्ड सेगमेंट है इनके बीच में, जिसके थ्रू ये आपस में कनेक्टेड है। और फिर राउटर 2 पे भी सेम। ये मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊं कि ऐसे ही बताता रहूं, वो पता लगे ना क्वेश्चन मार्क और हेल्प कैसे यूज करनी है आपको। हाँ जी सर। सर एवें दस दो क्योंकि मैं ऑलरेडी ये किया सी अज ओके ओके प्रैक्टिकल। ओके। सो देन ओबियसली बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब OSPF क्या करता है, राउटर ID पिक कर लेता है। तो अगर आप ये कमांड कन्फिगर करोगे, तो वो इस राउटर ID को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक बार उसने पिक कर ली, तो फिर आपको क्या है, OSPF के प्रोसेस को क्लियर करना पड़ेगा। So you need to run this command after configuring these router ID. Okay, so step by step configuration करो। Once you done the step one, make sure you verify. Then the second task, जो भी सेम ही लैब में अगर मल्टीपल टास्क हैं, स्टेप बाय स्टेप टास्क की कॉन्फ़िगरेशन करो, उसको वेरीफाई करो, फिर नेक्स्ट पे मूव हो जाओ। यहाँ पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर उसको आगे टाइम को सेव करने के लिए फिर उस टास्क को स्किप कर लो। अगर तो पहले टाइम लो अपना, स्लोली स्लोली, ठीक है, जल्दी में नहीं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन करो, मेक श्योर यू वेरीफाइड। ओके, फिर देखो आपको पता है जब OSPF प्रोसेस में क्या है, जब भी राउटर ID हमारी ऑलरेडी पिक हो जाती है, तो अगर आपको चेंज करनी है आप इस कमांड से चेंज कर लेते हो। लेकिन ये अभी इफेक्ट नहीं करेगी तब जब तक क्या है, आप क्लियर IP OSPF प्रोसेस नहीं करते। तो मेक श्योर यू डू क्लियर IP OSPF प्रोसेस। बाय डिफॉल्ट क्या नो, so you need to say yes, and once you clear the process it will pick the new router ID। टास्क 2 क्या है, configure the router to link with max value facing router 1 and router 3। router 2 must become the DR। So this is basically
और द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। ओके, सो यहाँ पे क्या है, राउटर टू का लिंक है विद मैक्स वैल्यू फेसिंग द राउटर 3। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट प्रॉपरली। ओके, तो यहाँ पे configure the router to link with the max value। जो राउटर 2 के लिंक है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू कॉन्फ़िगर करनी है, आईपी ओएसपी और प्रायोरिटी। तो बाय डिफॉल्ट अगर डीआर बनाना है तो इंटरफेस की प्रायोरिटी क्या 1 होनी चाहिए। और इसमें भी क्या है, जो एक बार डीआर बन गया वो डीआर बन गया। तो इन्होंने बोला अभी राउटर 2 के जो लिंक है वो, क्योंकि ये सारे देखो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है इस टोपोलॉजी में। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में क्या होता है, एक आपका शेयर सेगमेंट होता है, एक आपका पॉइंट टू पॉइंट होता है। शेयर सेगमेंट क्या होता है, जैसे आपका राउटर 1 लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, और फिर राउटर 2 और राउटर 3, दिस इज अ शेयर सेगमेंट। बट यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो पॉइंट टू पॉइंट है, ये भी इनका अलग अलग, इस नेटवर्क में ये अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन है, दिस इज अ डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन, दिस इज अ डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन, दिस इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। हर ब्रॉडकास्ट डोमेन में, यहाँ पे 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन है, हर ब्रॉडकास्ट डोमेन में क्या है, अलग डीआर होगा। तो यहाँ पे अलग डीआर का सिलेक्शन होगा, यहाँ पे अलग डीआर का सिलेक्शन होगा, यहाँ पे अलग डीआर का सिलेक्शन होगा। एज पर देयर टास्क वो राउटर 2 को डीआर नहीं बनाना चाहते। तो जो भी इसके इंटरफेस है, ये वाला इंटरफेस और ये वाला इंटरफेस जो कि राउटर 1 को फेस कर रहा है, राउटर 3 को भी फेस कर रहा है, उस पर हायर प्रायोरिटी कन्फिगर कर दो। Once you configure the higher priority, make sure you use this command। किस पे करनी है, ऑब्वियसली राउटर टू पे करनी है। क्लियर आईपी ओएसपी प्रोसेस, इन केस अगर ये बना हुआ है डीआर, तो ये क्या कर देगा, अपना डीआर का जो स्टेट है, जो पोजीशन है वो छोड़ देगा। वाई, बिकॉज वी हैव कॉन्फ़िगर द हायर प्रायोरिटी, other will become dr router। okay, so you can verify this show ip ospf neighbor, पहले ये दिखा रहे थे। once you clear the process once you clear the process, show ip ospf, show ip ospf, you need to verify this। okay, अगर आपको देखो यहाँ पे ये दिख रहा है शो ip ospf प्रोसेस, ये उल्टा बोल दिया क्या, जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी वो डीआर बनेगा, राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, नाम रॉन्ग हो गया। जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी, सो कॉन्फ़िगर क्या है, कॉन्फ़िगर द राउटर टू लिंक विद द मैक्स वैल्यू, सो मस्ट बिकम द राउटर टू मस्ट बिकम द डीआर, सॉरी आई एम रॉन्ग। सो यहाँ पे क्या है, जिसकी हायर वैल्यू होगी वो डीआर बनेगा। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इस पे हायर प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर करी, अब मेरे को करेक्ट नहीं करा। क्लियर आईपी ओएसपी प्रोसेस, यस करो। यस करने के बाद मेरे को देखो शो आईपी ओएसपी में नेवर मार रहा हूँ, मेरे को दोनों वीडीआर दिख रहे हैं। दैट मीन्स क्या, मैं खुद क्या हूँ, मैं खुद डीआर राउटर हूँ। ओके, तो जिसकी हायर प्रायोरिटी होएगी वो बनेगा। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी का तो 1 होती है, हमें यहाँ पे क्या था, राउटर 2 को क्या बनाना था, डीआर बनाना था। तो जो राउटर 2 के दोनों इंटरफेस थे उस पर हमने हायर प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर करी, इस कमांड को क्लियर करा, उसके बाद दोनों मेरे को क्या बीडीआर दिखा रहे हैं। दैट मीन्स क्या, मैं खुद क्या हूँ, आई एम एक्टिंग एज ए डीआर। ओके, तो ये सेकंड टास्क था। थर्ड टास्क का क्या था, यूजिंग द होस्ट वाइल्ड कार्ड मास्क configure all the 3 router to advertise a respective loopback IP। तो यहाँ पे कहते होते हैं, अब OSPF में आपको नेटवर्क का एडवर्टाइज करना है, एंड ऑब्वियसली यू आर यूजिंग सिंगल एरिया 0। तो यहाँ पे ये कमांड होती है नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के लिए, नेटवर्क ये लूपबैक आईपी है, और यहाँ पे इन्होंने बोला है स्पेशली, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क है। सो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क का ऑपोजिट होता है। तो ये हमने क्या है, 0.0.0 यूज करा है टू स्पेसिफाई द सिंगल आईपी और एरिया 0, ऐसे ऐसे करके तीनों एडवर्टाइज कर दिए। और उसके बाद आपको चेक करना है, मेक श्योर आपके राउटिंग टेबल में क्या है, रूट इंस्टॉल होने चाहिए थ्रू ओएसपीएफ। सो अगर आप शो आईपी राउट रन करते हो तो आपको सारा राउटिंग टेबल शो होता है, चाहे वो आपके पास राउट स्टैटिक से हैं या EIRP के थ्रू हैं। स्पेसिफिक अगर आपको राउट चेक करने हैं सिंपली ओएसपीएफ के, सो यू विल रन दिस कमांड शो आईपी राउट ओएसपीएफ। ओके, सो द फोर्थ टास्क क्या है, कन्फिगर
the link between router 1 and router 3 to disable their ability to add their OSPF route. Configure the link between router to disable their ability to add their OSPF route. This is the point. So we cannot add the OSPF router. So configure this task is configure the link between router 1 and router 3 to disable their ability to add the other OSPF route. So IP OSPF network point to point after using this command. I don't understand this. Like obviously अगर basically क्या होता है by default क्या होता है जो Ethernet टेक्नोलॉजी होती है Ethernet टेक्नोलॉजी समझते हो like gigabit. This is gigabit. आजकल जो देखो इंटरफेस होते हैं वो देखो गीगाबिट क्या होती है जिसमें वन RJ45 कनेक्शन होता है 1 Gbps ओके और फास्ट इंटरनेट पहले होता था जिसकी स्पीड क्या थी 100 Mbps। तो ये सारी है देखो इन सारी टेक्नोलॉजी में क्या है आर यूज होता है प्रोटोकॉल विच इज ब्रॉडकास्ट। ठीक है जो क्योंकि मेरे को सामने वाले का मैक एड्रेस नहीं पता पहले जो ओल्ड वैन इंटरफेस थे सीरियल जो कि आजकल यूज नहीं होते इसमें क्या मैं इसमें आर पैकेट नहीं ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होते थे बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आपको पता है आपके राउटर इथरनेट टेक्नोलॉजी के थ्रू यानी कि गीगाबिट इंटरफेस के थ्रू पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड मतलब क्या है पॉइंट टू पॉइंट मतलब क्या होता है जब जब इस इंटरफेस पे ट्रैफिक लीव करेगा तो सामने साइड क्या है एक ही रिसीवर है वन सेंडर वन रिसीवर दैट इज नोन एज पॉइंट टू पॉइंट। तो इस केस में क्या है बाय डिफॉल्ट जब इनकी जो नेट ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप है वो क्या होती है ब्रॉडकास्ट होती है तो इसमें डीआर वीडीआर का सिलेक्शन होता है जो कि अननेसेसरी है इसकी जरूरत नहीं है। तो इस केस में क्या है हम आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगर करते हैं एज वी नो वी हैव वन सेंडर वन रिसीवर वी डोंट नीड द डीआर बीडीआर हायर जो कि अननेसेसरी होता है। तो यहाँ पे इसने इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए राउटर 1 और राउटर 3 के बीच में क्या है ये कमांड रन करिए आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट। तो ये आप मेमोराइज कर लेना ठीक है आपको क्योंकि मेरे को स्टेटमेंट नहीं समझाइए प्रॉपर। ओके सो मूविंग टू द नेक्स्ट लैब मूविंग टू द नेक्स्ट लैब विच इज LACP कॉन्फ़िगरेशन। LACP कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ईथर चैनल दोनों स्विचेस के ऊपर क्या आई थिंक ये लैब आ सकती है आपको CCNA में आपको ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करना है। सो ईथर चैनल क्या होता है हम मल्टीपल लिंक को कंबाइन करके हम क्या है सिंगल लिंक बनाते हैं ताकि हमें क्या है लोड शेयरिंग कर सकें दोनों पे ट्रैफिक को ट्रांसफर कर सकें। बाय डिफॉल्ट क्या होता है एसटीपी क्या करता है एक लिंक को ब्लॉक कर देता है और एक ही लिंक ट्रैफिक कैरी करता है। तो बाय कॉन्फ़िगरिंग द ईथर चैनल या ईथर चैनल के अंदर प्रोटोकॉल आते हैं LACP तो हम दोनों लिंक के ऊपर क्या है ट्रैफिक है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे टास्क समझते हैं फिर उस टास्क को स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो LACP configure LACP number it 44 configure it between the switch 1 and switch 2 and these are the interface on both side LACP must be matched on both end okay configure then LACP configuration as a trunk port configure the trunk port with 8.1q tag configure the VLAN monitoring and untag VLAN other thing। so this is very simple। तो यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप पहले ईथर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है और जब भी आप ईथर चैनल की कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो देखो आपको सेम ही टाइम में आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है दोनों पोर्ट के ऊपर। सो स्विच साइड पे क्या है देन यू विल यूज द कमांड दिस कमांड इंटरफेस रेंज। यहाँ पे आप रेंज कमांड यूज करते हो देखो अगर आपके जो पोर्ट है वो सीक्वेंस में है से मेरे को पोर्ट इक्वली कॉन्फ़िगर करने हैं फ्रॉम 1 to 5 तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा जो कमांड यूज करूँगा स्विच के ऊपर इंटरफेस रेंज गीगाबिट 0/1-5 अगर सीक्वेंस में नहीं है ऐसे 1 7 9 अगर ऐसे है तो उस केस में यहाँ पे हम कोमा यूज करते हैं लाइक तो यहाँ पे हमें पूरा डिफाइन करना पड़ता है गीगाबिट 0/7 कोमा गीगाबिट 0/9 अगर सीक्वेंस में नहीं है।
लेकिन अगर सीक्वेंस में डैश और उसके बाद सीधा नंबर बस। और उसके बाद आपको जैसे एक कमांड होती है चैनल ग्रुप प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, LACP वो ऑप्शनल कमांड होती है। क्योंकि जब आप ये मोड डिफाइन करते हो एक्टिव, इसका मतलब क्या है, आप LACP यूज कर रहे हो। एक्टिव दो मोड होते हैं LACP के, एक होता है एक्टिव होता है, एक क्या होता है आपका पैसिव। यूजली आप ऑलवेज जो मोड है वो एक्टिव यूज करते हो। एक्टिव मीन्स दैट मीन्स यू आर यूजिंग LACP, तो आपको वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, नो शट डाउन। उसके बाद जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको फिजिकल पोर्ट पे नहीं करनी, ये आपका जो लॉजिकल पोर्ट चैनल बन गया है, इस पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे वो अपने आप ही इन फिजिकल पोर्ट के ऊपर क्या है, अप्लाइड हो जाएगी। तो उसने बोला है आपको क्या बनाना है, स्विच पोर्ट ट्रंक पोर्ट बनाना है इसको, क्योंकि स्विच टू स्विच क्या होता है, ऑलवेज ट्रंक पोर्ट होता है, सो दैट इट विल कैरी द मल्टीपल VLAN इंफॉर्मेशन। तो स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। यहाँ पे इसने बोला ट्रंकिंग जो प्रोटोकॉल है वो आपको ये यूज करना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, इट सीम्स ये टास्क 4 है, ये टास्क 1 2 3 की कॉन्फ़िगरेशन है। टास्क 4 में ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन दोनों स्विचेस के ऊपर करनी है, ठीक है। उसके बाद उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, शो पोर्ट चैनल या ईथर चैनल, सॉरी ईथर चैनल समरी, ठीक है। तो दोनों पोर्ट क्या है आपके, देखो अगर आपको यहाँ पे आएगा, देखो P44 आएगा, वहां पे जो आउटपुट आएगी वो SU आएगी। S का मतलब कहता है ले टू ईथर चैनल, U का मतलब क्या है अप। दोनों पोर्ट क्या आएंगे, P ब्रैकेट में P आएगा, P का मतलब क्या होता है बंडल, ऐसी आउटपुट आएगी आपकी। ओके, तो ये आपकी 3 टास्क की कॉन्फ़िगरेशन है। फोर्थ टास्क की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्विच 1 स्विच 2, इट सीम्स 746 इज द मॉनिटरिंग VLAN। ये कहाँ पे है इनकी आउटपुट, ओके। तो टास्क अगर प्लीज चेक शो VLAN एंड मेक श्योर यू विल सेट दिस VLAN एज अ नेटिव VLAN। तो बाय डिफॉल्ट जो ट्रंक पोर्ट होता है उस पर नेटिव VLAN क्या होती है, 1 होती है। उसको आप चेंज कर सकते हो एज पर देयर रिक्वायरमेंट, दे वांट टू सेट द दिस VLAN एज अ नेटिव VLAN, स्विच पोर्ट trunk native VLAN 740, and once you done the configuration on the both switches, make sure you save the configuration. Clear? हाँ जी सर। Okay, moving to the next lab. हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको ये सारा सिमुलेटर पे करके दिखाता। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, वॉइस VLAN कॉन्फ़िगरेशन करनी है। वॉइस VLAN क्या होता है, ठीक है। देखो नॉर्मली जो मेरे स्विच टू स्विच, देखो मैंने कहा था आपको ट्रंक पोर्ट रखते हैं हम। ट्रंक पोर्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल VLAN का ट्रैफिक पास करना। लेकिन एक्सेस पोर्ट क्या होता है, जो मेरे पोर्ट एंड मशीन की तरफ जाते हैं, एक्सेस पोर्ट यूजली ये क्या है, एक ही VLAN कैरी करते हैं, विच इज डाटा VLAN, जो मेरे एंड पॉइंट होंगे, एंड लैपटॉप प्रिंटर। लेकिन कई बार सेटअप क्या होता है, जैसे यहाँ पे पहले फोन होते थे सिस्को के, IP फोन होते थे, तो इस फोन पे 2 पोर्ट होते थे। तो स्विच का पोर्ट देखो, एक फोन पे जाएगा, फिर फोन से लैपटॉप कनेक्ट होगा या आपका सिस्टम कनेक्ट होगा। तो देन इस पोर्ट पे हमें 2 VLAN करनी पड़ेगी, एक डाटा के लिए, एक वॉइस के लिए। तो देखो ये ऐसी कनेक्टिविटी है, पहले यहाँ पे फोन लगा हुआ है, फिर फोन से आगे फर्दर लैपटॉप पे जा रहा है या डेस्कटॉप पे जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या है, स्विच पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ओके, सो कॉन्फ़िगरिंग VLAN 100 नेम एज compute, VLAN 200 as a telephony, which is for voice VLAN required for each task। तो ये जो कॉन्फ़िगर ईथरनेट 0 जो कि ये रहा स्विच 2 के ऊपर, नेम एज अवेलेबल। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप। ओके, लाइक स्विच 1 पे जैसे मैं ये स्टेप करता हूँ फर्स्ट, तो मेरे को पहले VLAN देना है, उसका नाम देना है, फिर ये देना है, नाम देना है, देन एग्जिट और अप्लाई द कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली स्विच 2 पे भी हमने क्या कर रखा है, VLAN 100 नेम कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे वॉइस का डिवाइस नहीं कनेक्ट किया हो, ठीक है। और उसके बाद
स्विच टू इस पे गए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 99, configure the VLAN named available so that you can। तो इन्होंने बोला स्विच टू पे हमें जो पोर्ट है वो उसको असाइन करना है जो भी वहाँ पे VLAN अवेलेबल होएगी। तो शो VLAN मारना यहाँ पे, जैसे इसने बता रखा है, तो रन द कमांड शो VLAN, जो भी VLAN अवेलेबल होगी नेम्ड अवेलेबल, तो यू कैन असाइन दैट। तो यहाँ पे VLAN असाइन कैसे करते हैं हम, किसी भी पोर्ट को स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, देन स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 99, दैट मीन्स क्या, ये पोर्ट हमारा भी इस VLAN में पार्टिसिपेट करेगा। और स्विच वन और स्विच टू पे जो मेरे पोर्ट हैं इथरनेट 0y0, इथरनेट 0y0, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 100। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर दिस टोपोलॉजी, यूजुअली हम रियल वर्ल्ड में क्या है, स्विच टू स्विच क्या ट्रंक पोर्ट रखते हैं, लेकिन इन्होंने स्पेशल कहा है इनके बीच में एक ही VLAN पास होनी चाहिए 100। तो अगर एक ही VLAN पास करनी है, दैट मीन्स क्या है, इन दोनों पोर्ट को क्या है, मेक श्योर जो इन्होंने बोला है वही आपको फॉलो करना है, या वही आपको कन्फिगरेशन करनी है उसके बिहाफ पे। तो इन्होंने बोला स्विच टू इस इसके इन दोनों के बीच में एक ही VLAN पास होनी चाहिए 100। अगर यहाँ पे मल्टीपल VLAN होते तो मैं इसको ट्रंक पोर्ट बनाता। तो अगर इथरनेट 0y0 को हमने एक ही VLAN पास करानी है तो इसको भी हमें एक्सेस भी डालना पड़ेगा। स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 100, स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 100। अब इस पोर्ट पे हमें देखो दोनों VLAN पास करनी पड़ेगी, डाटा भी और वॉइस भी। ओके, तो जो 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 मेरा ये टास्क है, देखो यहाँ पे हाउ वी असाइन द टू VLAN टू, यहाँ पे आपका फोन लगा हुआ है और आपका एक फोन लगा हुआ है और आपका डेस्कटॉप लगा हुआ है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस इस तरह से हम डाटा VLAN असाइन करते हैं, और वॉइस VLAN कैसे असाइन करते हैं, स्विच पोर्ट देन यूज द क्वेश्चन मार्क वॉइस VLAN। फिफ्थ टास्क का क्या है, कॉन्फ़िगर द ईथरनेट 0y1 ऑन स्विच टू सो दैट द सिस्को प्रोप्राइटरी नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल इज टर्न ऑफ। तो स्पेसिफिकली इसी इंटरफेस के ऊपर क्या है, हमें CDP को ऑफ करना है। तो CDP को अगर आप ग्लोबली ऑफ करना है तो कॉन्फ़िग मोड में जाके कमांड क्या है, नो CDP रन, ये ग्लोबली कमांड है। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक इंटरफेस पे करना है तो उसके लिए आपको, अगर आप ये कमांड कॉन्फ़िगर करोगे तो वो सारे इंटरफेस के ऊपर क्या ऑफ हो जाएगा। स्पेसिफिक इंटरफेस पे ऑन करना है या ऑफ करना है, तो इंटरफेस पे जाओगे आप 0y1 CDP इनेबल नो, स्पेसिफिक में आप ऐसा भी कर सकते हो। अ, पूरे यूजली कहते होते हैं, अगर आपको बाय डिफॉल्ट CDP क्या होता है, ऑन होता है CDP रन। अगर ग्लोबली ऑफ करना है तो नो यहाँ लग जाएगा ग्लोबल में, अगर स्पेसिफिक इंटरफेस पे करना है तो ये होगा। तो मेक श्योर अगर उन्होंने स्पेसिफिक इंटरफेस पे बोला ना तो आपको स्पेसिफिक इंटरफेस पे ही करना, आपको ग्लोबली नहीं करना। और उसके बाद मेक श्योर यू सेव द कॉन्फ़िगरेशन, कॉपी रनिंग स्टार्ट टू कर। क्लियर? हाँ जी सर। डिवाइस VLAN एंड ट्रंकिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो ये सारे कहते होते हैं इन्होंने VLAN बना रखे हैं और एज पर द रिक्वायरमेंट वही जो VLAN बनाने हैं वही आपको नाम भी वही देना है, कॉन्फ़िगर भी। और यहाँ पे जो ट्रंक बोर्ड बोला है इन्होंने, उस बोर्ड को ट्रंक बनाना है। ट्रंक बनाने के लिए कहते होते हैं मेक श्योर ये पहले इनकैप्सुलेशन यूज करनी है आपको, फिर ये, ठीक है। क्योंकि अगर आप अकेला जिस पोर्ट को ट्रंक बनाना, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, वो अगर आपने फर्स्ट ये कमांड रन कर दी तो वो एरर दे देगा, मेक श्योर यू फर्स्ट सेट द इनकैप्सुलेशन। तो मेक श्योर ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जो है पहले उसकी इनकैप्सुलेशन सेट करोगे, फिर आप उस पोर्ट को ट्रंक बनाओगे। और जो इन्होंने अगर बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ट्रंक पोर्ट क्या करते हैं, सारी VLAN पास करता है। लेकिन अगर कहते होते हैं इन्होंने बोला स्पेसिफिक ट्रंक पोर्ट पे स्पेसिफिक ये VLAN ही पास होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं प्रूनिंग, मैनुअल प्रूनिंग।
स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 210। तो अगर सिर्फ मेरे को VLAN 210 का ट्रैफिक पास करना है तो आई विल यूज द ट्रंक पोर्ट पे। प्रूनिंग बोलते हैं इसको, मैनुअल प्रूनिंग। तो अगर उन्होंने बोला कि ओनली VLAN 210 शुड बी परमिटेड, तो ये आपको प्रूनिंग करनी पड़ेगी ऐसे। ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीपल VLAN है तो वहां पे ऐसे कोमा आ जाएगा। अगर VLAN सीक्वेंस में है तो यहाँ पे डैश आ जाएगा। अगर लेट्स से VLAN 100 to 150 तो वैसे डैश आ जाएगा। इसे बोलते हैं प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब क्या है, इसे मैनुअल प्रूनिंग बोलते हैं। तो हम मैनुअली डिफाइन कर रहे हैं भी इस ट्रंक के ऊपर ये VLAN पास होनी चाहिए। उसके बाद पिंग मस्ट बी सक्सेसफुल, ये आपको टेस्टिंग करनी है और कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी है। सेव ही है, बस मेक श्योर एज पर दिस डायग्राम आपको कमांड पता होना चाहिए। ट्रंक पोर्ट कैसे बनता है, VLAN कैसे असाइन होती है, और फिर रीचेबिलिटी चेक करनी है आपको एज पर। यहाँ पे देखो ये जो कम्युनिकेशन टेस्ट हो रही है स्विच के थ्रू हो रही है, तो ये सारी क्या है, सेम VLAN की कम्युनिकेशन है। सेम VLAN की कम्युनिकेशन दैट मीन्स क्या है, टेस्टिंग क्या होगी, इस सिस्टम से ये IP पिंग होगा और इस सिस्टम से दूसरा IP पिंग होगा, क्योंकि स्विचेस के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है, राउटर नहीं है। तो सेम सेगमेंट तो कम्युनिकेशन हो नहीं सकते, जो भी सेम सॉरी डिफरेंट नेटवर्क तो कम्युनिकेशन हो नहीं सकते विदाउट राउटर। तो हमें सेम ही नेटवर्क की कम्युनिकेशन चेक करनी है। तो अगर अगर आप चेक करोगे इस टोपोलॉजी में, ठीक है, तो देखो PC5 से पिंग कर रहा है, PC5 से पिंग कर रहा है इसने। PC5 कौन सा है, ये वाला। PC5 से पिंग PC6 होना चाहिए। PC5 से देखो सेम ही नेटवर्क का पिंग कर रहा है, और PC3 से पिंग कर रहा है वही सेम। तो सेम नेटवर्क की कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि बिकॉज इन द टोपोलॉजी वी हैव ओनली स्विचेस, नॉट राउटर। नेक्स्ट लैब। तो यहाँ पे देखो, अब इस लैब में क्या कर रखा है इन्होंने, इंटरनेट दे रखा है। तो यहाँ पे नेटिंग कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ेगी हमें, और लेट्स सी दिस। ओके, तो क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उस हिसाब से हम इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये जो टोपोलॉजी है 2023 की है। ओके, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस टास्क। ओके, कॉन्फ़िगर द राउटर वन, तो कॉन्फ़िगर अ लोकल अकाउंट ऑन अ स्विच 101। स्विच वन पे लोकल अकाउंट कॉन्फ़िगर करना है विद टेलनेट एक्सेस ओनली। यूज द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, मेक श्योर जो जो लाइन VTY या वर्चुअल लाइन है उस पर टेलनेट ही ऑन 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 होना चाहिए। ऐसे बाकी सारे जो इनपुट है वो क्या डिसेबल होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, ये यूजर ने पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है। जो इसका प्रिविलेज लेवल है वो क्या है, एग्जैक्ट मोड। तो जब हम यूजर ने पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हैं, तो यहाँ पे मैंने देखा ये पासवर्ड यूज कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम सुजेस्ट करा था सीक्रेट, हालांकि रियल वर्ल्ड में हम सीक्रेट यूज करते हैं, बट यहाँ पे पासवर्ड यूज करना आप। तो यूजर ने, और जब हम यूजर ने पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हैं तो यूजली हम उस यूजर को प्रिविलेज भी डिफाइन कर सकते हैं। इस प्रिविलेज लेवल 15 का मतलब क्या होता है, फुल एक्सेस। ओके, और फिर यहाँ पे लिखा है लाइन VTY 0 to 4, जैसे उसने बोला था टास्क वन में। और ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ऑल होता है, तभी आपको जरूरत नहीं पड़ती टेलनेट या SSH लिखने की। लेकिन इसने स्पेसिफिक बोला है वी जस्ट ओनली नीड टू अलाउ टेलनेट। तो यहाँ पे आपको कमांड देनी पड़ेगी, ये हमारी वर्चुअल लाइन है VTY ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। अगर मैं टेलनेट को ऑन कर दिया, रेस्ट ऑफ सारे क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे, SSH डिसेबल हो जाएगा। हालांकि रियल वर्ल्ड में हम SSH यूज करते हैं, क्योंकि टेलनेट क्या है, नॉट अ सिक्योर वे टू एक्सेस अवर डिवाइसेस। ओके, फिर यहाँ पे लिखा है इसने लॉग इन लोकल। लोकल का मतलब क्या है, यूज द लोकल डेटाबेस। यूजली हम क्या लिखते हैं, लॉग इन, अकेला लॉग इन लिखते हैं और एंटर करते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉग इन लोकल का मतलब क्या है, वी विल यूज द लोकल डेटाबेस। लोकल डेटाबेस दैट मीन्स कि आप कोई भी स्विच को टेलनेट करेगा तो वो इस यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेगा, और उसके पास जो एक्सेस होगा वो फुल होगा, सीधा प्रिविलेज मोड में जाएगा वो। क्लियर। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी। वेरिफिकेशन कैसे करी टेलनेट,
टेलनेट ओपन करा यूजर ने पास, सीधा देखो इनेबल मोड में नहीं गया, प्रिविलेज मोड में गया। सेकंड टास्क क्या है? ओके, कॉन्फ़िगरिंग द सेकंड टास्क, अप्लाई अ सिंगल ACL ऑन स्विच 100 यूजिंग द फॉलोइंग। ACL का नाम ये रखना है हमें। ओके, और restrict only PC2 on VLAN 200 from pinging PC1। तो switch restrict only PC2 on VLAN, जो कि VLAN 200 में है, from pinging PC1। ओके, दैट मीन्स क्या स्टेटमेंट समझ गए आप? कहाँ से? फ्रॉम पिंगिंग PC1। तो मेक श्योर PC1 PC2 को पिंग नहीं कर सके। अलाउ ओनली PC2 to telnet the switch 101। okay, prevent all other devices from telnetting from VLAN 200। prevent all other devices, सिर्फ VLAN 200 के devices, prevent all other devices from telnet from VLAN 200। allow all other traffic network VLAN traffic for VLAN 200। so दो VLAN 200 से टेलनेट नहीं होनी चाहिए, प्रिवेंट करना है, लेकिन रेस्ट ऑफ ट्रैफिक क्या करना है, हमें अलाउ करना है। सो स्टेप बाय स्टेप। ओके, कन्फिगर नेम ACL जो हमने कन्फिगर करनी है वो ये करनी है। अब इसने ये कैसे डिसाइड करा ये सारा का सारा ट्रैफिक का हमें? सो ओबियसली लाइक इस टोपोलॉजी में यू सी जो जो मेरे ये स्विचेस हैं, तो ये सारे क्या हैं? ये PC1 VLAN 100 में है, ये 200 में। ठीक है, तो ये दो स्विचेस हैं, तो इस स्विच के ऊपर भी तेरा SBI इंटरफेस होगा। SBI समझते हैं, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। तो जब इस PC को ट्रैफिक भेजना है और इस स्विच पे भी ट्रैफिक होगा हमारा, इस स्विच के ऊपर भी हमारी SBI बनी होगी। ओके, सो फर्स्ट इसने कब बोला, जो ACL हमने बनाई और हमने क्या करना है, पिंग रिस्ट्रिक्ट करना है। तो जो PC रिस्ट्रिक्ट ओनली PC2 पिंग फ्रॉम PC पिंगिंग 1। तो डिनाई, तो इसने ये एक्सटेंडेड ACL के थ्रू कर रहा है, क्योंकि हम स्पेसिफिक सर्विस को ब्लॉक करना चाहते हैं। जैसे स्पेसिफिक टेलनेट अलाउ करना है, ICMP ब्लॉक करना है। जैसे अगर मेरे को पिंग ब्लॉक करना है, तो पिंग किसके अंदर आता है? ICMP के अंदर आता है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? PC2 क्या है? पिंग ना कर सके किसको? PC1 को। तो PC2 का IP एड्रेस क्या है? PC2 का IP एड्रेस ये है। PC1 का क्या है? 100.10। तो हमें क्या करना है? पहले डिनाई ICMP होस्ट, और उस होस्ट को हमने अलाउ कर दिया एज पर द रिक्वायरमेंट। सोर्स ये कर दिया, डेस्टिनेशन ये कर। फिर हमें जो सेकंड स्टेटमेंट क्या थी? अलाउ ओनली PC2 ऑन VLAN 200 टू टेलनेट स्विच 101। सो परमिट TCP होस्ट 210 होस्ट 100.1 इक्वल टू टेलनेट, ये स्पेसिफिक टेलनेट अलाउ कर दी। प्रिवेंट ऑल अदर टेलनेट फ्रॉम VLAN 200 ऑल अदर। अब कोई भी, हमें ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट को ऊपर रखेंगे हम, क्योंकि 200 में से सिर्फ ये VLAN टेलनेट कर सके हमारे स्विच को। और फिर हमें कहते होते हैं डिनाई इक्वल टू टेलनेट, और फिर कहते होते हैं लास्ट क्या है? परमिट एवरीथिंग। ओके, तो ये हमने एज पर देयर रिक्वायरमेंट हमने ACL बना दी। तेरे को इसमें कोई डाउट है? फिर मैं, अगर तू चाहे मैं इसको मोर डिस्क्राइब कर सकता हूँ। तेरे को इसमें डाउट है? क्योंकि नहीं सर। मेन यहाँ पे क्या है, अप्लाई कहाँ पे कर रहे हैं? वंस दिस ACL अप्लाइड,
उसके बाद इसने क्या कर रखा है, ACL को अप्लाई कर रखा है आउटबाउंड। और किस पे अप्लाई कर रखा है, स्विच 101 पे। ओके, सो मेनली जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो PC2 और VLAN 200, जो कि बेसिकली 100 की तरफ जा रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट VLAN की कम्युनिकेशन है। ओके, जो कि हमारी SBI इंटरफेस के थ्रू होती है। तो अब ये सारा ट्रैफिक देखो यहाँ पे आ रहा है, जा रहा है। तो ये कहते होते हैं इधर जा रहा है, मतलब इसके ऊपर। और इन्होंने क्या लगा रखी है, रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे लगा रखी है, सारी की सारी इस स्विच 101 पे लगा रखी है। उन्होंने ऐसा बोला कि 101 पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, नहीं। आइडली देखो, ये पता क्या होना चाहिए था, ये कॉन्फ़िगरेशन ACL इस स्विच पे अप्लाई होनी चाहिए थी, और इंटरफेस VLAN 200 के SBI पे होनी चाहिए थी, जो कि ज़्यादा इजी रहता। क्योंकि सारी रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो VLAN 200 के लिए। अगर मैं क्या करता सिंपली, देखो पहली स्टेटमेंट क्या करती, मैं इस स्विच के ऊपर ACL बनाता, IP एक्सटेंडर लिस्ट। सिंपली सोर्स क्या आता मेरा, इसे पहले ICMP को डिनाई करता, और फिर इस इंटरफेस पे जो ACL बनाता वो मैं इंड बाउंड अप्लाई करता। क्योंकि वैसे क्या होता है, अब देख अभी यहाँ पे मेरा क्या है, सारा ट्रैफिक जो भी मैं डिनाई करना चाहता हूँ वो यहीं पे ड्रॉप हो जाता, इंस्टेड ऑफ पहले वो इस स्विच के थ्रू, इस लिंक के थ्रू, फिर यहाँ पे आके ड्रॉप होता। तो ये अननेसेसरी मैं ट्रंक लिंक के ऊपर ट्रैफिक है मैं भेज रहा हूँ। बट यहाँ पे जो इन्होंने कर रखा है दैट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि एक ही काम, नेटवर्किंग में क्या होता है, एक ही चीज को अचीव करने के मल्टीपल वे है हमारे पास। इसने क्या कर दिया, जो ACL अप्लाई कर दी, वो क्या कर दी, अब ये जब मशीन ट्रैफिक भेज रही है, सपोज इस सिस्टम को भेज रहा हूँ, तो जब इस इंटरफेस पे ट्रैफिक क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो इसने क्या कर दी, इंटरफेस VLAN जो 100 है उसके ऊपर क्या आउटबाउंड अप्लाई कर दी। क्लियर? सो आई थिंक बेटर वे, अगर हमें ये सारी चीज करनी है तो हमें VLAN 200 पे अप्लाई करना चाहिए था, और एंड बाउंड डायरेक्शन पे करना चाहिए था। क्योंकि सारे के सारे जो सोर्स है, अगर आप देखो सोर्स क्या है, देखो 200, राइट? सोर्स क्या है, 200 है, राइट? And I believe like in CCNA you study, it is better to apply the restriction near the source. Okay, ये पढ़ा था CCNA में, शायद। हाँ जी सर। तो बेटर होता अगर इस ACL को मैं 200 पे इनबाउंड बाउंड अप्लाई कर देता, तो भी आई बिलीव जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। बट यू कैन ऑल्सो सी, इन्होंने, क्योंकि हमें एग्जाम पास करना है, दैट इज द थिंग। गिविंग एन एग्जाम और वर्किंग ऑन द रियल रिक्वायरमेंट और जो कंपनी नेटवर्क, टोटली क्या डिफरेंट थिंग है। बट यहाँ पे अभी हमारा पर्पस क्या है, एग्जाम को क्रैक करना। तो मेक श्योर अगर आपको ये है तो आप ऐसे आउटबाउंड भी अप्लाई करके फुलफिल कर सकते हो। क्लियर? ये समझ आए? एक्सटेंडेड में क्या होता है, पर्टिकुलर हाँ जी सर्विस सर। करते हैं, डिनाई ICMP। ICMP किसके लिए, पिंग के लिए है। टेलनेट क्या होता है, TCP, दिस इज पोर्ट नंबर टेलनेट का 23, इक्वल टू यहाँ पे 23 भी लिख सकते हैं आप। इसने स्पेसिफिक देखो इस PC को टेलनेट अलाउ करा था, रेस्ट ऑफ को जितने भी सिस्टम VLAN 200 में है, जो कि यहाँ पे हालांकि एक ही सिस्टम दिख रहा हमें, उसके लिए हमें प्रिवेंट करना था टेलनेट को, और रेस्ट ऑफ ट्रैफिक हमें अलाउ करना था। ठीक है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर करनी है हमें। सो it is a task, no notification action required. So we have to use the protect for the violation mode. Okay. सो पोर्ट सिक्योरिटी कैसे है, फर्स्ट क्या है, कमांड कॉन्फ़िगर करने के लिए इस स्विच पे
इन्होंने क्या पोर्ट सिक्योरिटी कन्फिगर करनी है हमें। टास्क कहाँ है, टास्क 3, ओके टास्क 3 राइट। सेट द मैक्सिमम नंबर of secure MAC address 4. Drop the packet with unknown source. No action, no notification action required. और all the secure MAC address should be learned dynamic. ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक्शन, नो एक्शन, नो नोटिफिकेशन एक्शन रिक्वायर्ड। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आई थिंक शट डाउन होता है इसका मोड। तो शट डाउन क्या पोर्ट को शट कर देता है, और नोटिफिकेशन एक लॉग मैसेज भी जनरेट होता है आपकी भी, यहाँ पे पोर्ट वायलेशन अकर हो गई है, मैं पोर्ट को शट कर रहा हूँ, बट इन्होंने स्पेशल बोला अभी नो एक्शन रिक्वायर। ओके, तो इस केस में, और नो लॉग मैसेज नोटिफिकेशन मैसेज रिक्वायर। तो इस केस में क्या है, देखो हाउ वी इनेबल द पोर्ट सिक्योरिटी। दिस इज द फर्स्ट कमांड टू इनेबल द पोर्ट सिक्योरिटी। बाय डिफॉल्ट मैक एड्रेस कितने अलाउ होते हैं, 1 होते हैं, बट इन्होंने स्पेशल बोला 4। तो ये क्या है, अपने आप ही जो पहले 4 मैक होंगे वो सिक्योर होंगे। स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन जो मेथड है वो प्रोटेक्ट होगा। तो एज पर देयर रिक्वायरमेंट हमें ये कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, बेसिकली ये आपको सारी की सारी लैब अभी हमारे पास देखो, हमने प्रीमियम मेंबरशिप ले लिया, आपको ये सारी गो थ्रू करनी पड़ेगी दोबारा अगर एग्जाम को क्लियर करना है। क्लियर। हाँ जी सर। ठीक है, बेटर होता ना अगर ये सारी प्रैक्टिस करिए आपने स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी की। हाँ जी सर। ग्रेट। ठीक है, named access list and DSCP snooping simulation। DSCP snooping पता क्या होता है? यस सर। क्या होता है? डीएससीपी अटैक से बचाने के लिए। ओके ग्रेट। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी है। तो टास्क 1 है क्या है, कन्फिगर ए लोकल अकाउंट ऑन गेटवे विद टेलनेट एक्सेस ओनली यूजर पॉइंट लाइन VTY 024। तो गेटवे 1 क्या है हमारा, ये राउटर। इस राउटर पे हमें ये यूजर नेम देना है, पासवर्ड देना है, और यहाँ पे स्पेशल बोला उन्होंने सीक्रेट। ओके, जहाँ पे इन्होंने सीक्रेट बोला वहाँ पे सीक्रेट यूज करना है, यहाँ पे पासवर्ड बोलना है पासवर्ड। इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट मोड यानी कि फुल एक्सेस। तो दैट मीन्स क्या, टास्क 1 क्या है, हम राउटर 1 पे जाएंगे, और राउटर 1 पे हम पहले ये यूजर नेम कॉन्फ़िगर करेंगे, और प्रिविलेज 15 का मतलब क्या है, फुल एक्सेस। उसने बोला है सीधा वो एग्जैक्ट मोड में जाना चाहिए, यानी कि जो हैश वाला होता है। जैसे हम देखो राउटर पे फर्स्ट लॉगिन करते हैं, पहले देखो ये आता है, और ये फिर हैश के बाद ये आता है। ये होता है प्रिविलेज लेवल 1, और ये बाय डिफॉल्ट होता है प्रिविलेज लेवल 15। तो इसको हम एग्जैक्ट मोड भी बोल देते हैं, या इसको इनेबल मोड भी बोल देते हैं। ओके, तो ये देखो इसने सिंपली यूजर ने बनाया, और सीक्रेट यहाँ पे कहते होते हैं ये पासवर्ड दिया देना हमें, ये देने की जरूरत नहीं है शायद, सीधे भी चल जाता काम। लाइन VTY 0Y4 ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, उन्होंने सिर्फ ओनली टेलनेट बोला, लॉग इन लोकल, ये पहले भी आया था। ये टास्क 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, टास्क 2, कन्फिगर एंड अप्लाई द ACL ऑन अ गेट टू कंट्रोल द नेटवर्क ट्रैफिक फॉर VLAN 1। अभी इन्होंने जहाँ बोला वहीं पे ACL अप्लाई करनी है, ऐसा नहीं आप स्विच 1 पे अप्लाई करने लगे हो। तो जो स्विच इस पे गेटवे भी अप्लाई करना है, किसको ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, VLAN 10 के ट्रैफिक को कंट्रोल करना है हमें। नेम ACL as a core पे ACL, allow boot TP, this is basically a DSCP packet, okay, HTTPS, restrict all other traffic, log into the ingress interface, source MAC, the packet source destination IP and port, okay। So बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसने बोला है जो भी जो ट्रैफिक हमारा इनग्रेस आ रहा है, जो रिसिस्ट करना है, और उसका लॉग मैसेज भी जनरेट करना है। ओके, तो इसके कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो दिस इज लाइक हाउ यू विल क्रिएट IP एक्सेस लिस्ट। दिस इज बेसिकली बूट PC। ये यहाँ पे देखो आपको पता,
पता होना चाहिए लाइक कौन सी एप्लीकेशन, लेकिन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन या तो टीसीपी ट्रांसपोर्ट यूज करती है या यूडीपी ट्रांसपोर्ट यूज करती है। आईसीएमपी का पिंग का अलग ट्रांसपोर्ट होता है। आईसीएमपी एप्लीकेशन होती है। देखो नेटवर्किंग का काम क्या है, हमेशा एंड यूजर को एप्लीकेशन का एक्सेस प्रोवाइड करना। तो ये सारे मेरे क्या हैं, लेयर ओएसए के लेयर 4 प्रोटोकॉल है। और लेयर 7 क्या आता है यहाँ के अंदर, इसके अंदर एप्लीकेशन आ जाती हैं। और जो अगर सारी एप्लीकेशन अलाउ करनी है वो आईपी के अंदर आ जाता है। तो टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी। तो टीसीपी के अंदर देन क्या एप्लीकेशन आ जाती हैं, लाइक जैसे यूडीपी की एप्लीकेशन आ गई हमारी, डीएससीपी आ गया, ये यूडीपी एप्लीकेशन है। एचटीटीपी आ गया, टेलनेट आ गया, एचटीटीपीएस। इनके सारे क्या होते हैं, पोर्ट नंबर होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, लेयर 7, ये क्या होती है, एप्लीकेशन होती है। ये यूडीपी के पोर्ट नंबर है। बूट पीसी, बूट पीएस। आई बिलीव दिस इज बेसिकली, इफ वी चेक, आई थिंक दिस इज रिक्वायर्ड फॉर डीएससीपी। लेट मी सी। यूडीपी पोर्ट नंबर 67, okay, बूट पीसी एंड बूट पीएस पोर्ट नंबर। हम इसको नाम से भी, so this will be right 67, 68. This is required for DSCP application. Then, as per the requirement, जो VLAN 10 है वो एच टी पी एस को भी अलाउ करे। ठीक है, तो आप यहाँ पे पोर्ट नंबर भी लिख सकते हो 67, अगर पोर्ट नंबर पता है। यहाँ पे 443 भी लिख सकते हो, एच टी एच बी एस भी लिख सकते हो। उसके बाद लिखते हैं डिनाई। डिनाई करना सारा का सारा ट्रैफिक कहीं भी जाए, यानी पूरे वीलन के लिए, वीलन 10 के लिए। ये वीलन 10 का सबनेट है। और लॉग इनपुट का मतलब क्या है, जो भी उसने बोला है, जो भी ट्रैफिक डिनाई होगा, मेक श्योर वो लॉग जनरेट करे और उसका सोर्स मैक भी आए। तो इस लॉग, इसमें यहाँ पे दो ऑप्शन होती हैं। एक ऑप्शन होती है अकेली लॉग, मतलब जो भी ट्रैफिक लॉग, यूजली हम ये रियल वर्ड में यूज नहीं करते। लॉग का मतलब क्या है, सिंपली लॉग मैसेज जनरेट करेगा भी हाँ ये ट्रैफिक हिट करा और एसीएल ने इसको डिनाई कर दिया, डिवाइस पे ऐसा लॉग मैसेज आएगा। इसका मतलब क्या होता है, लॉग इनपुट का मतलब क्या होता है, लॉग मैसेज भी जनरेट करेगा और जिस सोर्स मैक से ट्रैफिक आया वो उसका सोर्स मैक भी मेंशन करेगा। तो दिस इज लाइक दैट्स व्हाई दे आर सेइंग। और उसके बाद अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है। अब इस टोपोलॉजी में क्या है, इन्होंने क्या कर रखा है, इंटर वीलन राउटिंग करके किस पे, राउटर पे। अब ये सारा का सारा हमें अप्लाई करना है इस इंटरफेस पे इंटरफेस राउटिंग आती है, राउटर वाला स्टिक, इथरनेट 0 बाय 0। दो इंटरफेस बने होंगे, एक वीलन 10 के लिए और एक वीलन 20 के लिए। और इन्होंने सारे रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगानी थी, इस इंटरफेस पे लगानी थी वीलन 10 के लिए। तो मैं इस इंटरफेस पे जाऊंगा, E0 बाय 0 0 10, और यहाँ पे ACL अप्लाई करूंगा इनबाउंड। जो क्योंकि दैट्स वाई मैं पहले भी बता रहा था, आउटबाउंड लगा रखी थी ACL। हमेशा हम जितना नियरेस्ट हो सके तभी ट्रैफिक ब्लो करांगे, ताकि क्योंकि पर्पज ही नहीं है आगे बेच के ट्रैफिक ड्रॉप करने का। जितना क्लोजेस्ट ड्रॉप करेंगे, हमारे जो आगे वाली जो नेटवर्क बैंड विड्थ है वो यूज नहीं होंगे। वो जितना क्लोजेस्ट हमें जो ट्रैफिक ड्रॉप करना है, मैं उसको वहीं पे ड्रॉप कर दूंगा ट्रैफिक को। ओके। जी सर। नेक्स्ट क्या है, इन्होंने बोला है कॉन्फ़िगर द डीएचसीपी स्नूपिंग ऑन स्विच 1 फॉर किसके लिए, वीलन 10 के लिए। डिसेबल दिस ऑप्शन 82। इनेबल द डीएचसीपी स्नूपिंग मैक एड्रेस वेरिफिकेशन, इनेबल द ट्रस्ट इंटरफेस। Yeah, this is used for preventing the DHCP attack. This is the one way, like switch 1 के ऊपर हमें इनेबल करना है, और DHCP स्नूपिंग VLAN 10 के लिए, और नो IP DHCP स्नूपिंग इंफॉर्मेशन ऑप्शन, दिस इज फॉर डिसेबलिंग द DHCP ऑप्शन 82। एंड IP DHCP स्नूपिंग वेरीफाई द मैक एड्रेस। ये सारे कमांड आपको याद करनी पड़ेंगी। फर्स्ट कमांड क्या है, इनेबलिंग ग्लोबली पर्टिकुलर VLAN के लिए, ये ऑप्शन डिसेबल करने के लिए नो IP DS, देन DHCP इज वेरीफाइंग द मैक एड्रेस। उसके बाद क्या है, आपको ट्रस्ट पोर्ट बताने हैं, कौन कौन से ट्रस्ट पोर्ट है। तो ये ट्रस्ट पोर्ट कौन कौन से होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इस केस में जो DHCP है, आई एम अज्यूमिंग वो आपका किस पे होगा,
as per the trust port, let me see, switch 1 ethernet 1 2। हाँ, ये आपका आपके जो अपलिंक पोर्ट है। तो यहाँ के आपका जो अपलिंक पोर्ट है, यानी कि अपलिंक पोर्ट वैसे ये है और इधर से भी है। तो आई एम अज्यूमिंग डीएचसीपी आपका राउटर पे होगा। तो VLAN 10 के लिए आपको डीएचसीपी स्विपिंग करनी थी। तो यहाँ पे कहते होते हैं, जब मेरे पास डीएचसीपी रिप्लाई पैकेट इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है। तो ये दोनों मेरे लिए क्या है, ट्रस्ट पोर्ट है। इथरनेट 1 0x1 0x2। क्योंकि आई एम बेसिकली प्रिवेंटिंग, लाइक लेट्स से कोई, अगर कोई यहाँ पे लैन में मेरा कोई डिवाइस कनेक्टेड है VLAN 10 में, और उसने अपने इस सिस्टम को डीएचसीपी सर्वर बना दिया, अगर वो मेरे को डीएचसीपी पे रिप्लाई पैकेट भेजेगा इस पोर्ट पे जिस पे ट्रस्ट कमांड कॉन्फ़िगर नहीं है, तो मैं उसके ऑफर को मैं ड्रॉप कर दूंगा। मैं सिंपली जो मेरे जो अपलिंक पोर्ट हैं जो ऊपर डीएचसीपी सर्वर की तरफ जा रहे हैं, वही अगर मेरे को बैक डीएचसीपी ऑफर पैकेट भेजेंगे, मैं उसी को एक्सेप्ट करूँ। ठीक है। और ये आप पर वीलान भी कर सकते हो। तो इसने पर वीलान क्योंकि 10 के लिए बोला था, तो ये दोनों मेरे जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो मेरे क्या होंगे, ट्रस्ट पोर्ट होंगे। बाकी सारे क्या होंगे, अनट्रस्ट। तो ये भी आपकी कहते होते हैं होगी लैब। नेक्स्ट कौन सी लैब है? नेक्स्ट लैब वीलैन सीडीपी। वीलैन सीडीपी तो सिंपल ही है। वीलैन बेसिकली क्या है, वीलैन बनाने हैं, वीलैन कैसे साइन करना है, ये ग्लोबली कमांड है। सीडीपी किसी स्पेसिफिक इंटरफेस पे करना है, ये कमांड होती है। अगर डिसेबल करना है तो ग्लोबली नो आ जाएगा, इंटरफेस पे भी डिसेबल करना है तो नो आ जाएगा। उसके बाद जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको सेव करनी है। IPv4 एंड IPv6 सिमुलेशन होगी। तो IPv4 IPv6 सिमुलेशन आपको करनी है। तो इसमें बेसिकली क्या है, टास्क वन क्या है, सबनेट नीड टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ होस्ट। तो ये जो इनके स्विच हैं, लेयर 3 है स्विच। और यहाँ पे क्या है, सबनेट यूज करने हैं हमें। ओके। तो मैक्सिमाइज द होस्ट, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस कम्प्लीटली। ओके, सबनेट ये हमें मिला, मीट द मैक्स मीट द सबनेट रिक्वायरमेंट एंड मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ होस्ट। We need to deploy the 16% for बोलो। तो ये बेसिकली सब नेटिंग से रिलेटेड है, इसको आप देख लेना। ठीक है, कैसे मतलब क्या है, पर मेक श्योर यू गो थ्रू। ओके। हाँ ओके, जी। सब नेटिंग। अब क्या है, स्टैटिक राउटिंग इतनी वैसे इजी नहीं आएगी मेरे को लग रहा है। ये आ सकती है भाई, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। सो configure the router one, configure a route on a R1, ensure R1 ensure that R1 prefer the R2 when traffic designated to the server only। Okay, so जब सर्वर को एक्सेस करना तो राउटर 1 ट्रैफिक राउटर 2 से जाए, ना कि राउटर 3 से। ओके, सिंपल है। कॉन्फ़िगर है डिफॉल्ट राउट ऑन R2 को, R2 हमारा ISP से कनेक्टेड है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो इस केस में क्या है, सर्वर को एक्सेस करना हमें। सर्वर का IP क्या है, 10.0.41 इस सबनेट में है। तो राउटर 1 पे हमें राउट डालना है, किसकी तरफ डालना है ये। ओके, यहाँ पे देखो इन्होंने स्पेसिफिक सर्वर का IP लिखा हुआ। तो मेक श्योर यू सी द डायग्राम क्लियरली। तो यहाँ पे सर्वर का IP लिखा हुआ है ये। तो उसने क्लियरली लिखा है, जब राउटर 1 पे जब वो इस सर्वर को एक्सेस करेगा तो ट्रैफिक इस तरफ से जाना चाहिए। तो हमें अगर IP राउट और ये बस सर्वर का होस्ट राउटिंग कर दी, और किस तरफ कर दी, 10.0.12.2 की तरफ, जो कि हमारा इस तरफ 10.0.12 चेक कर लियो। इस तरफ IP क्या है, अगर 1 है कि /30 में क्या, तो दो ही IP होते हैं। अगर एक तरफ मेरी तरफ यूजर सामने तरफ क्या होगा, 2 होगा। तो ये उसका राउटर 2 का IP है। देन क्या करना है, राउटर 2 पे डिफॉल्ट रूट करना है, इसकी तरफ ISP की तरफ। सो IP राउट 0.0.0.0.0, नेक्स्ट होप IP किसका होगा, ISP का होगा। थर्ड टास्क क्या है,
configure the route on R1 to ensure that R1 will use the R2 for the R4 LAN. If the link fail between R3 and R4. Okay. So राउटर 1 पे राउट डाला किसके लिए 10.10 बट लेट मी सी दिस 10.0 सो यहाँ पे क्लियरली ले रखा है किसके लिए ओके इस राउटर 4 का जो लैन है 10.0.41 के लिए अगर ये डाउन हो गया तो हमें ट्रैफिक किसकी तरफ भेजना है अगेन राउटर 2 की तरफ भेजना है बट obviously ओनली इफ द लिंक इज फेल तो ये बैकअप राउट है बाय डिफॉल्ट राउटर डाला होगा उसकी एडी वैल्यू क्या होती है स्टैटिक राउट क्या होती है 1 होती है सो यहाँ पे इन्होंने बोला है इफ द लिंक फेल बिटवीन राउटर 3 एंड राउटर 4 अगर ये लिंक फेल हो जाता तो राउटर 1 पे क्या है हमें बैकअप राउट डालना है तो जो बैकअप राउट डालना है तो जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे 254 ही देनी है 1 से कुछ भी हायर दे सकते हैं तो इसने हायर दे दी 254 आप 2 भी दे सकते हो आप 10 भी दे सकते हो 1 से ज़्यादा देनी है आपको वैल्यू तो ये एडी वैल्यू होती है स्टैटिक राउट की तो स्टैटिक राउट की एडी वैल्यू देखो नॉर्मली हम स्टैटिक राउट देते हैं आईपी राउट डेस्टिनेशन आईपी डेस्टिनेशन सबनेट मास्क नेक्स्ट ऑफ आईपी उसके बाद जो वैल्यू होती है 12255 ये आपकी एडी वैल्यू होती है जो अगर कुछ भी नहीं दे रहे जो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू क्या होती है 1 और लोअर प्रेफर की जाती है लेकिन अगर मेरे को बैकअप पाथ देना है तो मैं एक और राउटिंग डालूंगा और उसकी एडी वैल्यू क्या रख दूंगा मैं हायर रख दूंगा ओके सो कॉन्फ़िगर द राउट on the router 1 to ensure that router 1 prefer the router 3 when the traffic is designated to okay. तो फिर ये हमें क्या है देखो वही करते होते हैं राउट डालना राउटर 1 पे किसकी तरफ राउटर 3 की तरफ ये प्राइमरी रूट हो जाएगा और ये बैकअप रूट हो जाएगा राउटर राउटर 2 की राउटर 1 की तरफ देखो इसमें राउटर 3 की राउटर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम इस सबनेट के लिए लैंड सबनेट के लिए राउटर 4 के इस तरफ से क्या होगा प्राइमरी पाथ होगा और इस तरफ से क्या होगा सेकेंडरी पाथ होगा इस तरफ जो राउट डाला है तो कोई एडी वैल्यू नहीं डिफाइन करी 1 है और इस तरफ जो एडी वैल्यू डाली है 254 डाली है ये सारा कुछ राउटर 1 के परस्पेक्टिव है ओके और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन सेव कर दी और फिर लैब कंप्लीट वीलैन हाँ जी क्वेश्चन है कोई नहीं सर नहीं ओके वीलैन एंड एलएलडीपी सिमुलेशन ओके वीलैन कॉन्फ़िगर कर रखी है स्विच बोर्ड मोड एक्सेस एलएलडीपी समझते हो एलएलडीपी सिस्को जैसे है सिमिलर जैसे शो सीडीपी से पता चल जाता है हमें भी कौन कौन सी नेबर है सिमिलर शो एलएलडीपी से भी क्या है एल लिंक लेवल डिस्कवरी प्रोटोकॉल शो एलएलडीपी नेबर ये सिस्को प्रोप्राइटरी क्या है सीडीपी क्या है सिस्को प्रोप्राइटरी है एलएलडीपी क्या है ओपन स्टैंडर्ड है अगर एक तरफ सिस्को का डिवाइस है दूसरी तरफ कोई भी वेंडर का फायरवॉल है पोल्टो जूनिपर का स्विच है तो इसके केस में अगर मेरे को नेबर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं एलएलडीपी रन करता हूँ और जैसे सीडीपी को रन करने के लिए कमांड क्या होती है सीडीपी रन तो एलएलडीपी को रन करने के लिए क्या होती है एलएलडीपी रन एलएलडीपी क्या है हमारा ओपन स्टैंडर्ड है अगर किसी स्पेसिफिक इंटरफेस के ऊपर एलएलडीपी को डिसेबल करना है तो ये कमांड है शो नो एलएलडीपी रिसीव नो एलएलडीपी रन सिस्को में क्या था अगर किसी स्पेसिफिक को क्या करना है डिसेबल करना है किसी इंटरफेस पे तो शो सीडीपी इनेबल दिस इज अ कमांड क्योंकि कई बार क्या होता है हम डिवाइस पे किसी दूसरे क्लाइंट का डिवाइस लगा देते हैं मैं नहीं चाहता मेरे जो एक क्लाइंट है इसको मेरे डिवाइस के बारे में पता चले कुछ भी तो मैं इस पोर्ट पे मैं डिसेबल करूंगा मैं एलएलडी को भी डिसेबल करूंगा और मैं सीडीपी को भी डिसेबल करूंगा लेकिन जो मेरे रेस्ट ऑफ डिवाइसेस हैं वो
पता कर सके भी हाँ ये सामने वाला नेबर ये है, उसका ये होस्ट नेम है, कौन सा मॉडल है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। इवन आप सीडीपी के थ्रू आप अगर आप शो सीडीपी नेबर पोर्ट नंबर डिटेल डालते हो तो सामने वाले का आईपी पता चल जाता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक उसके लिए तो मेक श्योर ये आप इसकी प्रैक्टिस करो। ये आपने कभी रन करी है LLDP कमांड? हाँ जी सर। ओके, ग्रेट। IPv6 स्टैटिक, तो IPv6 वही है सिंपली। IPv6 राउटिंग के लिए IPv4 राउट, डेस्टिनेशन आईपी, सबनेट मास्क और नेक्स्ट हॉप आईपी, ये क्या है एडी वैल्यू है इसमें भी। अगर कोई फ्लोटिंग राउटिंग का मतलब क्या होता है, दो राउट डालने, एक प्राइमरी एक बैकअप। जो बैकअप पाथ होगा उसकी एडी वैल्यू 1 से ज्यादा रखनी है, 2 रख दो 5 रख दो जो भी रखनी है। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, प्राइमरी, एक प्राइमरी देखो सेम ही नेटवर्क है, सेम ही नेटवर्क है, ये प्राइमरी पाथ होगा, ये सेकेंडरी पाथ होगा। ओके। हाँ जी सर। सर इन फ्लोटिंग, केस लाइक OSPF ਦੀ AD वैल्यू 110 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ना, हाँ इन केस वो आप वो लिख दिए तो कोई इशू तो नहीं? नहीं 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 नहीं, यूजली हम कहते होते हैं अगर 110 भी लिख दोगे तो भी कोई इशू नहीं होगा, बट इसमें सिंपल रखो बस। जो प्राइमरी है उसकी 1, जो सेकेंडरी है उसकी 2 या 10, या बिल्कुल ही लास्ट रख दो 254, जस्ट नॉट टू कंफ्यूज विद अदर एडीज वैल्यू तो। बट उससे कोई इशू नहीं आएगा, मतलब अगर आप OSPF की भी रख दोगे। क्लियर? फ्लोटिंग राउटिंग। हाँ जी सर। नेक्स्ट वॉइस वीलैन, तो वॉइस वीलैन वही है बस, कहते होते हैं वॉइस वीलैन कैसे डालनी है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट वॉइस वीलैन, और जो भी नाम दे रखा है LLDP रन करना है, डिसेबल करना है या इनेबल करना है, स्पेसिफिक इंटरफेस पे इनेबल करना है तो ये। सो यहाँ पे याद रखना, पहले ग्लोबली ऑन करा फिर इसने स्पेसिफिक इंटरफेस पे ऑन करा। LLDP मस्ट बी इनेबल ऑन द डिवाइस बिफोर यू। ठीक है, CDP डिसेबल करना है तो इस पोर्ट पे कहते होते हैं, अगर CDP डिसेबल करना तो ये कमांड है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है बस CDP ऑन करने की, डिसेबल करने की, LLD, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी कमांड है, और अगर स्पेसिफिक इंटरफेस पे कह रहे हैं तो क्या कमांड है। ये फिर वो आ गई DHCP स्नूपिंग वाली आ गई। ISL ट्रंक LACP की आ गई। ठीक है, this time they have clearly mentioned the requirement asked to configure the we must use inter switch link, we must use ISL instead of load one। क्यों? तो अगर इन्होंने ट्रंकिंग प्रोटोकॉल ISL बोला तो यहाँ पे ISL यूज करना है आपको। we don't, this is obsolete, बट CCN आई थिंक दिस इज, लेट मी सी लेटेस्ट अभी भी। बट ये जस्ट क्या है, आपको बस आपकी नॉलेज चेक करने के लिए एग्जाम, अगेन रियल वर्ल्ड में हमेशा .1 की यूज होता है ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। और इवन के मैंने देखे कई जो सिस्को के स्विचेस के जो लेटेस्ट वर्जन है, दे डोंट हैव दिस ऑप्शन, दे हैव ओनली 8.1Q। तो ये ऑब्सोलीट मतलब यूज नहीं होता रियल वर्ल्ड में, बट यहाँ पे आपकी जस्ट नॉलेज चेक करने के लिए। तो पहले आपको इनकैप्सुलेशन डिफाइन करनी है, फिर ये कमांड रन करनी है। अगर आप सीधी ये कमांड रन करोगे वो एरर आ जाएगा। और जब भी एरर आ गया, मेक श्योर यू प्रॉपरली रीड द एरर। वंस यू अंडरस्टैंड द एरर, आई बेट यू कैन इजीली सॉल्व दिस इशू। ओके, जब तक आपको, कई बार क्या होता है हमें एरर पड़ते ही नहीं है, बस अपनी कमांड एग्जीक्यूट करने लगे रहते हैं। पहले आप प्रॉपर, अगर कोई एरर आ भी रहा है वाइल configuring any command, make sure you read the error properly। okay, वो एरर किस बेस पे कह रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें भी बस अलाउड नेटिव वीलैन स्टैटिक राउट IPv सेम ही लग रही है मेरे को, कुछ कोई डिफरेंट टॉपिक नहीं लग रहा।
फ्लोटिंग राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग, एनटीपी, डीएससीपी सारी सेम ही लग रही है मेरे को। ठीक है, तो ये हमारी लैब्स थी। मेक श्योर मैं एक्सेस भेज रहा हूँ, यूजर नेम पासवर्ड। इस एक्सेस से आप ये 9 ट्यूट पे लॉग इन करके जो भी बाकी के रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है, मेक श्योर यू रीड द क्वेश्चन एंड सी दीज लैब अगेन, द कमांड्स अगेन, देन यू। कल कितने बजे आपका एग्जाम? अभी टाइम पड़ा, राइट? 1 बजे, हाँ जी। सुबह उठ कर ना आपको ये दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा सहज। हाँ जी, हाँ जी। ओके, हाँ जी। ठीक है, मैं आपको ये यूजर नेम पासवर्ड भेज रहा हूँ इसका। हाँ जी, ओके सर। मैं ही सोचा ऐसे मैं जल्दी सो के सुबह पढ़ लूँगी। ठीक है, ठीक है, सो जाओ फिर आप आओ। हाँ जी सर। ओके, चलो। ओके सर, थैंक यू।